So in today's class, as far as now, we have done fundamental rights, DPSPs, and your fundamental duties. So in next one class, in today's class, we will be discussing about the parliament, president, prime minister, vice president, how the parliament functions, right? And in next class, we will discuss judiciary and we will wind up your constitution in your next class, right? Okay. So ओके स्क्रीन शेयर कर रहा हूं मैं, ठीक है? विजिबल है सबको स्क्रीन? विजिबल है सबको स्क्रीन? यस सर। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सो पार्लियामेंट, जो द पार्लियामेंट कंसिस्ट विद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लोकसभा एंड योर राज्यसभा, ठीक है? जैसा एज वी ऑल नो, इन लोकसभा द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आर सिलेक्टेड बाय अस, जो 2019 में इलेक्शन हुए थे, 2014 में इलेक्शन हुए थे, एंड 2024 में जो इलेक्शन होंगे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राइट? सिमिलरली इन राज्यसभा, members of Rajya Sabha are selected by your member of legislative assemblies, right? Are you guys aware with this, the role of Rajya Sabha and Lok Sabha? Can anyone please tell me what is Rajya Sabha and what is Lok Sabha? Sir, in Lok Sabha, members are elected, and in Rajya Sabha, they are nominated on the basis of their some kind of skills. For example, photography. Photography? Seriously? Yes, sir. So, how many photographers have been nominated in Rajya Sabha so far? No, sir. No, sir. I am saying that उनके उसमें कुछ तो भी ऐसे स्पेशल मास्टरी है, बिकॉज अभी MLC जब बन, स्पेशल मास्टरी नीड्स टू बी डन इन आर्ट एंड कल्चर, पब्लिक वेलफेयर, नॉट इन फोटोग्राफी. And also only 12 members are nominated, like Sachin Tendulkar was nominated, like Javed Akhtar was nominated, Justice Ranjan Gogoi was nominated. You need to be master in a good field, right? Only 12 Okay, members sir. are nominated. The strength of Rajya Sabha is 250. Sir. Yes. Sir, then my question is, how was Uddhav Thackeray elected? Sorry. Then how was Uddhav Thackeray elected? अभी right now I am discussing about Rajya Sabha. No, sir, मेरा उसी से ही, Rajya Sabha. Wait. Was Uddhav Thackeray a member of Rajya Sabha? आगे क्यों चल रहे हो यार? Let me come to the point ना. When I discuss about Okay, sir. state Okay, legislative sir. assembly, Okay, sir. member of legislative council, then you ask this question. Okay, sir. है ना? Thank you, sir. चलो. So basically we have a president, right? अभी see, the president of India पे question definitely GK में आएगा. Who is the president? Who was the president? Who was the first president? Who won president as an independent candidate? Who won the president selection with highest margin? Who was the returning officer? है ना? How many member of parliament? How many MLA voted for Draupadi Murmu? And who was the another candidate, right? So in today's class we will be discussing about the president, right? There should be a president. Imagine the role of a queen, British queen. British queen is the head of state, right? Similarly, the president of India is the head of state. Prime minister is the head of government. Similarly, the prime minister of Britain is the head of the government, right? Now
वी विल डिस्कस अबाउट सी, आप लोग प्रेसिडेंट के क्या क्या क्वालिफिकेशंस होते हैं, इलेक्शन कैसे होता है, दिस इज वेरी 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 इजी टर्म्स, राइट, यू कैन रीड बाय योर ओन. आई विल बी डिस्कसिंग द मेन पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, जिसमें टेक्निकल चीजें होती हैं, ठीक है. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल द एग्जीक्यूटिव एक्शन, जितने भी लॉज पार्लियामेंट बनाता है, इमेजिन फॉर लेट्स से द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, उसमें सिटीजनशिप कौन किसको मिलनी है, क्या क्या रेटिफिकेशंस होंगे, all these things will be dealt by officers, IAS officer, IPS officer, IRS officer, right, we all are aware, they all work on behalf of the president of India. Gazetted officer, have you all heard the term gazetted officer? All the gazetted officer represents the president of India, right, they work for the president of India. Executive, he is the head of executive, he execute all the policies, all the terms sorry, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट, जितने भी एग्रीमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम पे साइन होते हैं, दे ऑल आर साइंड ऑन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राइट, getting my point? Yes, sir. Okay, next. President एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन. सी, आप लोगों ने देखा होगा कि ओथ कौन दिलाता है सबको. When Prime Minister Narendra Modi took oath in 2019, who administered him the oath? Recently, Justice UU Lalit took the oath. Who administered him the oath? एक सेरेमनी होती है छोटी सी, जहां पे प्रेसिडेंट आते हैं, पीछे एक मूर्ति लगी हुई है, वो प्रेसिडेंट ओथ दिलवाते हैं. हैव यू ऑल सीन दिस? सो प्राइम मिनिस्टर को ओथ प्रेसिडेंट दिलवाते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को ओथ दिलवाते हैं प्रेसिडेंट, गवर्नर्स को अपॉइंट कौन करता है? स्टेट के प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं. कैग को ओथ कौन दिलवाता है? प्रेसिडेंट दिलाते हैं. चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ओथ दिलवाने का काम प्रेसिडेंट का है. चेयरमैन, यूपीएससी के चेयरमैन, फाइनेंस कमीशन, हाई कोर्ट के जजेस कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट. ठीक है. सो ऑल द अपॉइंटमेंट्स आर डन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ये ओथ भी उन्हीं को दिलवाते हैं. ठीक है. अब आपने सुना होगा देयर आर शेड्यूल्ड एरियाज. फॉर एग्जांपल, देयर आर सर्टेन ट्राइबल एरियाज सच एज मंडला इन मध्य प्रदेश, राइट, झाबुआ इन मध्य प्रदेश. इन नॉर्थ ईस्ट स्टेट देयर आर सर्टेन एरियाज जहां पे ट्राइबल कल्चर को प्रोटेक्ट करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. उन एरियाज को प्रेसिडेंट एज अ शेड्यूल्ड एरिया डिक्लेयर कर देते हैं. वहां पे लोकल गवर्नमेंट का रूल चलता है, लोकल लॉज बनाए जाते हैं. जमीन लेने से पहले दे टुक कंसिडरेशन फ्रॉम द लोकल पीपल, विलेज पंचायत. सो इन प्रेसिडेंट डिक्लेयर सच शेड्यूल्ड एरिया. ठीक है. ऑल्सो एक इंटर स्टेट काउंसिल होती है जो 1992 में फर्स्ट टाइम इंडिया में बनी थी, राइट. सो इंटर स्टेट काउंसिल का जो मेन टास्क है दैट इज टू, जो इश्यूज होते हैं डिफरेंट स्टेट में, स्टेट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट में, उनको रिजॉल्व करना. राइट, गेटिंग माई पॉइंट? एम आई ऑडिबल? एम आई क्लियर एवरीवन? Yes, sir. हाँ, okay. Keep telling me that I am audible, I am understandable, right? So that it will be a good motivational factor for me as well. अच्छा, स्टेट, सेंट्रल स्टेट काउंसिल का टास्क समझ में आ गया. सेंट्रल स्टेट काउंसिल होती है जिसमें प्राइम मिनिस्टर बैठ करके सारे चीफ मिनिस्टर के साथ में बैठ करके अपने कॉन्फ्लिक्ट इश्यूज को रिजॉल्व करते हैं, पॉलिसीज डिटरमाइन करते हैं, किस स्टेट को क्या करना है, किस स्टेट को क्या करना चाहिए, इस स्कीम में क्या करना है. ये सारे काम काउंसिल टू सेंटर स्टेट और इंटर स्टेट कोऑपरेशन में होता है. ठीक है. गेटिंग माय पॉइंट? नाउ अब प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं तो ही हैज अ पावर टू रिमूव एज वेल. सपोज रिसेंटली मुख्तार अब्बास नकवी, उससे पहले रविशंकर प्रसाद, all they were removed as a minister, right? Who removed them? It was the president of India who removed them. Although prime minister advised the president
कि सर इनको रिमूव करना है, सो ही रिमूव द इंडिविजुअल मिनिस्टर। अच्छा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, पूरे मिनिस्टर को रिमूव नहीं कर सकते, ठीक है, कैसे अपन आगे पढ़ेंगे, बट अगर किसी एक इंडिविजुअल मिनिस्टर को रिजाइन करना हो तो प्रेसिडेंट उनको रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के वेणुगोपाल राव अभी अटॉर्नी जनरल हैं, ठीक है। इफ गवर्नमेंट विशेस टू रिमूव हिम देन द प्रेसिडेंट विल रिलीज द ऑर्डर। वी हैव सीन गवर्नर्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द स्टेट, इट इज द प्रेसिडेंट हु रिमूव द गवर्नर। अच्छा, चेयरमैन ऑफ यूपीएससी और जितने भी मेंबर्स हैं यूपीएससी के, चेयरमैन हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, हाई कोर्ट के जजेस हैं, जितना भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, कैग हैं, इनका रिमूवल सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के हाथों में है, ठीक है। देयर इज अ प्रोसीजर विच आई विल बी डीलिंग विद दैट, मैं बताऊंगा कि कैसे रिमूव होते हैं, बट फॉर्मल अप्रूवल प्रेसिडेंट का होता है। बेसिकली वी कैन सी दैट जितने भी अपॉइंटमेंट, जितने भी रिमूवल हैं, they all are done by the sign of the president, right? Getting my point? Now legislative function, अच्छा legislative function सबको पता है क्या होते हैं। administrative function में वो administration करते हैं, and in legislative function जो law बनाने वाला जितना भी काम होता है that is done by the president of India। अच्छा, as we all know that जब भी पार्लियामेंट का सेशन स्टार्ट होता है, यू मस्ट हैव हर्ड दैट विंटर सेशन, मानसून सेशन, बजट सेशन, हैव यू ऑल हर्ड दीज टर्म्स? हैव यू ऑल हर्ड दीज टर्म्स? Yes. सो जितनी भी ये सेशन स्टार्ट होते हैं, इन सेशन को स्टार्ट होने से पहले प्रेसिडेंट की परमिशन इज रिक्वायर्ड, ठीक है। अब कई बार ऐसा होता है कि लोकसभा पासेस अ बिल बट राज्यसभा से वो बिल पास नहीं होता है, बिकॉज लोकसभा में इट इज वेरी इजी टू गेट मेजॉरिटी, राज्यसभा में मेजॉरिटी इजीली मिलती नहीं है। सो एक ज्वाइंट सिटिंग का कॉन्सेप्ट होता है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स को साथ में बिठा दिया जाता है, फिर वो एज अ सिंगल हाउस वो उसको पास करते हैं। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 लिख लो, ऐसे ही पास हुआ था, ठीक है। लोकसभा राज्यसभा में जब डेडलॉक हो जाता है, लोकसभा ने कोई बिल पास कर दिया, राज्यसभा नहीं कर रही है, राज्यसभा ने पास कर दिया, लोकसभा नहीं कर रही है, दोनों को एक साथ बिठा के पास करवा दो, ठीक है। दिस इज कॉल्ड जॉइंट सिटिंग, ठीक है। अब इलेक्शन होने के बाद जो पहला सेशन होता है उसको प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं, ठीक है। साल का जो पहला सेशन होता है प्रेसिडेंट उसको भी अपॉइंट करते हैं, ठीक है। लोकसभा का जो स्पीकर है ओम बिरला, वो कौन अपॉइंट करता है? अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है। नाउ ही नॉमिनेट्स 12 मेंबर्स टू राज्यसभा। अब राज्यसभा की टोटल स्ट्रेंथ है बच्चों 250, 250 इज द स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा। इसमें 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड, ठीक है, ओनली 12 members, not and remaining 238 are selected और elected जितने भी लोकल एमएलएज होते हैं। फॉर एग्जांपल मध्य प्रदेश में राज्यसभा की देयर आर 11 सीट्स, राइट। सो यहाँ पे एमएलएज कितने हैं? 230। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की स्ट्रेंथ है मध्य प्रदेश में 230। आई होप आप लोग एमएलएज और एमपी में डिफरेंस समझते हैं, ठीक है। एमएलए की स्ट्रेंथ है 230। सो राज्यसभा की सीट कितनी है? 11। सो 11 जो 230 मेंबर्स हैं वो प्रोपोर्शनेट वे में उन 11 मेंबर्स को सिलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने और किसी एक्स ने इलेक्शन लड़ा राज्यसभा के लिए एक सीट। नाउ कांग्रेस, आई बिलोंग टू कांग्रेस, द अदर पर्सन बिलोंग टू बीजेपी। BJP has a 200 MLAs and I have a 30 MLAs out of 230। समझ रहे हैं सब लोग? ध्यान से सुनना, ठीक है। Now 230 will be divided by 11 and एक इलेक्शन के लिए इतने मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए होगा। अब टेक्निकली आउट ऑफ 230 they have got 200 and I have got 30। So 11 में से एक इलेक्शन is possible for me, 10 election will be gone to them। समझ में आया कैसे प्रोपोर्शनेट वे में राज्यसभा का मेंबर इलेक्ट होता है?
किसी को कोई डाउट है इसमें? 6 साल के लिए होता है नॉमिनेशन, 6 साल के लिए, ठीक है। किसी को कोई डाउट है? एंड जो 12 लोग प्रेसिडेंट अपॉइंट नॉमिनेट करते हैं, दे आर नॉमिनेटेड ऑन द बेस ऑफ आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड सोशल सर्विसेज, राइट? आर्ट, लिटरेचर, Sir. साइंस एंड सोशल सर्विसेज। सर यस, सर वो राज्यसभा के जो नॉमिनेट होते हैं वो 6 साल के लिए और लोकसभा के 5 साल के लिए क्या? हाँ। लोकसभा के मेंबर 6 साल के लिए इलेक्ट होते हैं, राइट? एंड राज्यसभा के इलेक्शन हर बार 5 साल में होते हैं, ठीक है। आया समझ में? राज्यसभा को अपर हाउस बोला जाता है, अपर हाउस, ठीक है। ये लोअर हाउस और अपर हाउस का कॉन्सेप्ट 1919 में आया था, ठीक है। आया समझ में? अब यहां से राज्यसभा के बारे में ये भी जान लो कि राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है, दैट इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अभी नए वाइस प्रेसिडेंट मिले हैं, जगदीप धनखड़ जी, इन पे भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, जीके में। वाइस प्रेसिडेंट इज द चेयरमैन ऑफ योर राज्यसभा। राज्यसभा में किसी को कोई डाउट है? राज्यसभा में किसी को कोई डाउट है? अच्छा, राज्यसभा में एक लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा में भी होता है और लीडर ऑफ गवर्नमेंट भी राज्यसभा में होता है। पीयूष गोयल इज द लीडर इन राज्यसभा, ठीक है, और मिस्टर आनंद शर्मा इज द लीडर ऑफ अपोजिशन इन राज्यसभा। गेटिंग माय पॉइंट? राज्यसभा क्लियर हुआ सब लोगों को? अब बात करते हैं लोकसभा की। लोकसभा में इलेक्शन होते हैं हर साल। जनरल इलेक्शन 2014 में हुए थे, 2019 में हुए थे, ठीक है। लोकसभा की जो टोटल स्ट्रेंथ है अभी, दैट इज 543। बच्चों ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, टेक्निकल है, ठीक है, पढ़ने से सिर्फ समझ में नहीं आएगा। 543 इज द स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा, ठीक है। 2020 से पहले यहां पे भी 2 लोगों का नॉमिनेशन होता था, एंग्लो इंडियंस का। एंग्लो इंडियन कम्युनिटी मींस जो ब्रिटिशर्स यहां रह गए थे आफ्टर इंडिपेंडेंट, उन लोगों को भी रिप्रेजेंटेशन लोकसभा में दिया जाता था। नाउ इट हैज बीन अबॉलिश्ड अगेन। लोकसभा में एंग्लो इंडियन का रिप्रेजेंटेशन अबॉलिश हो चुका है, ठीक है। गेटिंग माय पॉइंट? इनके क्वालिफिकेशन क्या होते हैं? सिटीजन होना चाहिए, 30 एज है, 25 एज है, ये सब चीजें आप लोग देख लेना, ठीक है। नाउ कम बैक टू द प्रेसिडेंट। अच्छा, प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है ये भी मैं एक बार बता देता हूं। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में इलेक्टेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं। ध्यान रखना, कैसे कैसे? इलेक्टेड मेंबर्स, ठीक है। ऑल द इलेक्टेड मेंबर्स पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। अब सर इलेक्टेड क्या होते हैं? आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जितने भी इलेक्शन सांसद जो होते हैं, लोकसभा के मेंबर। राज्यसभा के मेंबर 12 लोग जो नॉमिनेटेड थे वो वोट नहीं करते। मैंने क्या कहा? इलेक्टेड मेंबर्स, ध्यान रखना। नॉमिनेटेड मेंबर्स प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। एमएलएस, जितने भी एमएलएस हैं वो वोट डालेंगे। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जितने भी सांसद हैं जो चुनाव जीते हैं वो डालेंगे। राज्यसभा के मेंबर जो चुनाव जीते हैं वो डालेंगे, ठीक है। और दिल्ली के जितने भी वो हैं आपके एमएलए एमपी, वो भी वोट डालेंगे। जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पौंडीचेरी के भी डालेंगे, ठीक है। गेटिंग माय पॉइंट? हमेशा ध्यान रखना, नॉमिनेटेड मेंबर्स डू नॉट टेक पार्ट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। अब सर रिमूवल कैसे होता है प्रेसिडेंट का? अगर प्रेसिडेंट को रिमूव करना हो तो भाई प्रेसिडेंट का रिमूवल बहुत सिंपल है। 1/4 मेंबर, फॉर एग्जांपल राज्यसभा की स्ट्रेंथ कितनी है? 250। लोकसभा की स्ट्रेंथ कितनी है? 543। इनके 1/4 मेंबर, गेटिंग माय पॉइंट? 1/4 मेंबर अगर लिख करके दे देते हैं प्रेसिडेंट को कि सर आपका रिमूवल होगा, आपको 14 दिन का टाइम दिया जाता है, आप पार्लियामेंट के सामने आकर के बोल सकते हो। आप अपने ग्राउंड्स, ये ग्राउंड है। अब किसी को हटाएंगे तो बिना बात के तो हटाएंगे नहीं। यू नीड टू टेल हिम द ग्राउंड, देन ही विल डिफेंड हिज ग्राउंड। फिर उसके बाद आप
अगर वो डिफेंड ग्राउंड्स नहीं कर पाते तो 14 दिन में आप इन 14 days you will pass a motion in Lok Sabha and then you will pass a motion in Rajya Sabha and therefore the president will be removed. अपॉइंटमेंट रिमूवल समझ में आया? लोकसभा राज्यसभा, ठीक है? बताओ एक बार मेरे को क्विकली चैट बॉक्स में आके, चैट बॉक्स में बताओ। संडे में नींद में है यार सब लोग, सो तो नहीं गए? ओजस जग रहा है, सिर्फ ओजस ही जग रहा है। नो सर। हाँ, ओम भी जग रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। आया समझ में? अब प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में अच्छे से पढ़ लेना, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि इस साल इलेक्शन हुए हैं तो देयर इज अ ह्यूज 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 पॉसिबिलिटी दैट द क्वेश्चन माइट कम। ठीक है, एक बार सारे पॉइंट्स रिवाइज कर दो। अरे भाई ठीक है, देखो प्रेसिडेंट, आपका जो पार्लियामेंट होता है वो प्रेसिडेंट लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर के बनता है। प्रेसिडेंट को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है इलेक्टेड मेंबर। इलेक्टेड मेंबर में कौन कौन आता है? राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स, जिसमें 12 मेंबर्स जो नॉमिनेटेड होते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। उसके बाद लोकसभा के सारे मेंबर्स, 2 एंग्लो इंडियंस होते थे पहले, वो अब नहीं है। फिर आपके मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ पे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल उद्धव ठाकरे जो थे वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। आपको बेसिकली इलेक्शन जीतना पड़ेगा, नॉमिनेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद एक राज्यसभा में कैसे, राज्यसभा की स्ट्रेंथ है 250, 238 का इलेक्शन होता है, 12 लोग नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट। ठीक है, जिसके किस किस फील्ड में? आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड सोशल सर्विस। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आया था, सर सचिन को क्यों अपॉइंट कर दिया? सचिन तो भाई किसी चीज में आते नहीं है, साइंस में नहीं आते, वो आर्ट में नहीं आते, वो लिटरेचर में नहीं आते, उनको सोशल सर्विस में डाल दिया, सोशल सर्विस वाले वे में। मैरी कॉम को भी अपॉइंट किया था। ठीक है, सो उनको सोशल सर्विस में ऐड कर सकते हैं। राइट, दीज आर द ग्राउंड्स। आई होप वो फोटोग्राफर वाला क्वेश्चन अभी मैंने डील किया। ठीक है, राइट नाउ लोकसभा में हर साल इलेक्शन होते हैं, डायरेक्टली आप वोट करते हैं 18 साल से जितने भी ऊपर के लोग हैं, एंड यू ऑप्ट योर लोकसभा। एंड लोकसभा में जिसकी मेजोरिटी होती है, आउट ऑफ 543 जो भी पार्टी 272 लेकर के आती है, दैट बिकम्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आप सबको अब याद आ रहा होगा कि बीजेपी ने 313 सीट जीती थी आउट ऑफ 543, 272 is the majority and BJP got its prime minister as a Narendra Modi second time. ठीक है, getting my point? अब अच्छा, कोई भी बिल पास होता है, जैसे कोई एक बिल आया, लेट्स से सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट या फिर जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। ठीक है, ये बिल पहले जाएगा राज्यसभा में या लोकसभा में, किसी में भी जा सकता है, किसी में भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ये ध्यान रखना। ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है कि पहले राज्यसभा में होगा या पहले लोकसभा में होगा, किसी में भी जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा हाउस उसको पास करेगा मेजोरिटी से, मेजोरिटी इन द सेंस कि 2/3 मेजोरिटी। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट? 2/3 इज द मेजोरिटी। फॉर एग्जाम्पल अगर 30 लोग हैं तो 20 लोग उसे पास करने चाहिए। कुछ कुछ सिंपल मेजोरिटी होती है, कुछ कुछ स्पेशल मेजोरिटी होती है बच्चों। सिंपल मेजोरिटी में आप पास करते हो, सिंपल मेजोरिटी से आउट ऑफ 20 11 पीपल अप्रूव्ड इट। जो छोटे मोटे बिल होते हैं उनको सिंपल मेजोरिटी से पास कर लेते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होते हैं उनको स्पेशल मेजोरिटी से किया जाता है। स्पेशल मेजोरिटी में 2/3 लोग अप्रूव करने चाहिए, आउट ऑफ 30 20 पीपल शुड अप्रूव। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट? नाउ अब जो बिल पास हुआ है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल होता है, ये एक्ट कब बनेगा? जब प्रेसिडेंट इस पे साइन कर देंगे। समझ रहे हो आप लोग?
प्रेसिडेंट का जब साइन होगा देन ओनली इट विल बिकम द एक्ट ऑफ द गवर्नमेंट। लॉ तभी बनता है जब वो पास कर लेता है। अच्छा, डाटा प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल डाटा जो बिल था 2019 वाला, वो बिल था क्योंकि उसको प्रेसिडेंट ने अप्रूव नहीं किया था। द बिल डिड नॉट गेट द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का अप्रूवल मिल जाता है देन ओनली द बिल बिकम्स द एक्ट। ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट। अब सर कुछ मनी बिल भी होते हैं, मनी बिल के बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसे कि आपका जो बजट आता है, मनी बिल होता है बेसिकली जो गवर्नमेंट के पास जो कंसोलिडेटेड फंड होता है उससे पैसा निकालना है, टैक्स इंपोज करना है किसी के ऊपर। ठीक है, किसी से पैसे बोरो करने हैं, किसी से पैसे निकालने हैं, बिल बजट पास करना है। इसके लिए प्रेसिडेंट का अप्रूवल लेटर ऑन, पहले प्रेसिडेंट का अप्रूवल चाहिए होता है, बाद में प्रेसिडेंट की असेंट नहीं चाहिए होती है, प्रेसिडेंट को असेंट देनी पड़ती है। ठीक है, अब सिंस प्रेसिडेंट का अप्रूवल पहले ही ले ले, अच्छा जैसे मान लो मनी बिल मुझे अप्रूव करना है तो मैं प्रेसिडेंट से अप्रूवल लेके आऊंगा कि सर हम लोग बजट पास कर रहे हैं, इतनी इतनी तारीख को बजट पास करेंगे, आप अपने साइन कर दो। सो कॉमन सेंस के हिसाब से अगर प्रेसिडेंट खुद उस बजट को पास करवा रहे हैं तो बाद में वो असेंट क्यों रिफ्यूज करेंगे? इज इट पॉसिबल इफ आई एम अप्रूविंग समथिंग देन इज इट पॉसिबल दैट आई विल डिसअप्रूव लेटर ऑन? नो। ठीक है, जैसे कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट, ये होता है आपका बजट। अच्छा, कैग के बारे में सब लोग जानते हैं। ये कैग जो होते हैं एक तरीके से बेसिकली सीए का काम करते हैं। जितने भी गवर्नमेंट के फाइनेंसेस हैं, जितने भी गवर्नमेंट के पैसे जमा होते हैं, जितना भी गवर्नमेंट खर्चा करती है, जो भी पॉलिसी पे कितना खर्चा हुआ था है, ये कैग पूरा चेक करते हैं। ये कैग अपनी रिपोर्ट किसको देते हैं? प्रेसिडेंट को देते हैं। ठीक है, फिर फाइनेंस कमीशन होती है, हर 5 साल में एक फाइनेंस कमीशन होती है। फाइनेंस कमीशन का काम ये होता है बच्चों कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को कितना पैसा देगी, कब देगी, है ना। जो लोकल गवर्नमेंट होती है, पंचायत होती है, उनको कितना पैसा देगी, कितना पैसा निकालना है। फाइनेंस कमीशन बताती है कि आपका कितना खर्चा हो सकता है, कितना पैसा आपको देना चाहिए, कितने पैसे की जरूरत है। और आपका कैग जो होता है वो लेटर ऑन चेक करता है कि आपने पैसा सही जगह खर्च किया या नहीं किया। ठीक है, नाउ फोर्थ इज योर रिपोर्ट ऑफ द यूपीएससी। यूपीएससी ने इलेक्शन कितना, यूपीएससी ने कौन से एग्जाम कराए, कितने कैंडिडेट सिलेक्ट हुए, ठीक है, क्या क्या पैटर्न था, पैटर्न चेंज हुआ, कितना पैसा खर्च हुआ, क्या कैंडिडेट थे, क्या क्राइटेरिया थे, इस सबकी रिपोर्ट बना करके प्रेसिडेंट के पास जाती है और प्रेसिडेंट पार्लियामेंट में डालते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद नेशनल कमीशन फॉर एससी एसटी और ओबीसी, जितनी भी कमीशंस हैं रिलेटेड विद द बैकवर्ड क्लास, इन पे कितने एक्शन हुए, क्या रिपोर्ट थी, कितने इंसिडेंट हुए, इनकी रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं नेशनल कमीशन, वो भी प्रेसिडेंट के पास ही जाते हैं। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। अब जैसा मैंने कहा कि बिल तभी बनता है जब वो बिल प्रेसिडेंट अप्रूव कर देते हैं। अच्छा, अगर प्रेसिडेंट अप्रूव नहीं करें तो, प्रेसिडेंट अगर असेंट नहीं देते हैं तो वो बिल एक्ट कभी नहीं बनेगा, वो लॉ कभी नहीं बनेगा। इट विल नेवर बी टर्म्ड एज अ लॉ। नाउ व्हेन द बिल विल बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द प्रेसिडेंट, Narendra Modi ji went to the president, sir, we have passed this law from Lok Sabha and Rajya Sabha. Now you have this bill. Now sign it. So president has a 3 option. President has 3 options. First, that she may give her assent. पहले तो वो करेंगे कि वो साइन कर देंगे कि छोड़ो साइन कर दिया. Then it will become the act. ठीक है. Now she may withhold her assent as well. अभी उन्होंने डिसाइड किया कि मैं कोई इस पे एक्शन नहीं ले रही हूं. यूजुअली ऐसा होता नहीं है, बिकॉज प्रेसिडेंट को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट किसके हैं? बीजेपी के. देन व्हाई वुड दे गो अगेंस्ट द बीजेपी? ठीक है, देयरफॉर जनरली प्रेसिडेंट असेंट दे देते हैं, एंड इसीलिए प्रेसिडेंट को रबर स्टाम्प कहा जाता है, क्योंकि सिर्फ आपका साइन करने का काम है सर, और वो आप कर ही देते हो. ठीक है. थर्ड,
अच्छा, मनी बिल के अलावा जितने भी बिल होते हैं उनको प्रेसिडेंट कंसिडरेशन के लिए एक बार भेज सकते हैं। जैसे मान लो द्रौपदी मुर्मू ने मोदी जी से कहा कि सर आप एक बार फिर से सोच लो एक बार, ठीक है। मोदी जी ने कहा कि ओके मैम, विल चेक, एक बार, सिर्फ एक बार। अब मोदी जी वेंट टू द पार्लियामेंट एंड पार्लियामेंट ने फिर उस बिल को पास कर दिया। नाउ इट विल बी द टास्क ऑफ द प्रेसिडेंट टू अप्रूव दिस, ठीक है। मतलब एक बार प्रेसिडेंट रिकंसिडरेशन के लिए उस बिल को भेज सकती हैं। आया समझ में? गेटिंग माई पॉइंट? एम आई क्लियर बच्चों? एम आई ऑडिबल? मनस्वी, दिव्यानी? हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। कहीं पे कोई डाउट हो चैट बॉक्स के थ्रू प्लीज लेट मी नो, ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल है और आपको घर पे जाके इसको अच्छे से पढ़ना होगा, ठीक है। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू टेल यू ईच एंड एवरीथिंग इन क्लास, ठीक है। मैं लिंक शेयर करूंगा, मैं ये भी पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा, आप लोग अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। नाउ एक और चीज, नाउ अब अपन डिस्कस करेंगे प्रेसिडेंट की वेटो पावर्स हो गई। अब अपन बात करेंगे ऑर्डिनेंस पावर। अच्छा एक चीज बताओ कि प्रेसिडेंट तो सर रहते ही नहीं है। लेजिस्लेचर जो होता है आपका, जो सेशन चलता है पार्लियामेंट का सेशन, वो ऑल द टाइम नहीं चलता है। अभी पार्लियामेंट का सेशन नहीं चल रहा है, आप लोगों ने देखा होगा कुछ पास नहीं हो रहा है बिल से, लोकसभा की न्यूज नहीं आ रही, लोकसभा ने ऐसा बिल पास नहीं किया, वैसा पास नहीं किया। महीने, साल में यूजुअली 3 से 4 महीने ही चलता है वो, ठीक है। बट वो रिमेनिंग टाइम में अगर कोई कंटिजेंसी फंस गई तो, फॉर एग्जाम्पल कोविड कब आया था इंडिया में? इट केम इन मार्च, राइट। इमेजिन मार्च में लोकसभा और राज्यसभा सेशन में नहीं है। अब इस कंटिजेंसी सिचुएशन में आप क्या करोगे? लॉ तो बनाना पड़ेगा, पार्लियामेंट के बिना सर लॉ बनता नहीं है। प्रेसिडेंट को एक स्पेशल पावर है जिसको बोलते हैं ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, ठीक है। ऑर्डिनेंस पावर, ऑर्डिनेंस पावर होती है जिसमें प्रेसिडेंट लॉ बना देते हैं। पहले लॉ बना दो, बाद में इसको पार्लियामेंट से अप्रूव करा लेंगे जब पार्लियामेंट बैठेगा। आया समझ में? मोदी जी बोल देंगे कि सर अभी पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, लोकसभा इज नॉट फंक्शनिंग, आई नीड टू मेक अ लॉ, ठीक है। देन प्रेसिडेंट विल पास एन ऑर्डिनेंस, नॉर्मल लॉ की तरह प्रेसिडेंट साइन कर देंगे पहले, बाद में दैट विल बी अप्रूव्ड बाय लोकसभा एंड राज्यसभा। गेटिंग माय पॉइंट? जस्ट अ रिवर्स प्रोसीजर। यूजुअली क्या होता है, लोकसभा राज्यसभा पास करते हैं, देन प्रेसिडेंट साइन। बट इन कंटिजेंसी, भाई प्रेसिडेंट तो अपने घर में रहते हैं, लोकसभा राज्यसभा हमेशा फंक्शन नहीं करती है। प्रेसिडेंट से पहले साइन करवा लो, बिल बनवा लो, एक्ट बनवा लो, एंड लेटर ऑन इसको अपन पास करवा लेंगे। बट अगर लोकसभा के बैठने के बाद, वंस द लोकसभा कम्स इनटू दिस सेशन, यू नीड टू पास दिस विद इन 6 वीक्स। मतलब अगर आज लोकसभा बैठ गई है वापस से, तो इसको 6 वीक के अंदर इसको पास करना पड़ेगा, अदरवाइज इट विल बी लैप्स्ड। आया समझ में? गेटिंग माई पॉइंट्स क्लियर? किसी को कोई डाउट है इसमें? बताओ। क्विकली क्विकली क्विकली। अच्छा एक और चीज होती है कि सर इमरजेंसी पावर, इमरजेंसी की पावर को हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। अगर किसी का अभी तक कोई डाउट हो तो बता दो। जल्दी। चलो इमरजेंसी पावर मैं एक बार चैट बॉक्स में देख लेता हूं, किसी को कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओके, इमरजेंसी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है। अच्छा पहले डिस्कस करेंगे नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी पूरे इंडिया में कहीं भी लगाई जा सकती है, ठीक है। जैसी 1975 में लगी थी, जैसी 1962 में लगी थी चाइनीज वॉर के टाइम पे, जैसी पाकिस्तान के साथ 1963 वॉर में, 65 के वॉर में लगी थी, ठीक है। सो नेशनल इमरजेंसी अभी तक हमारे देश में
नेशनल इमरजेंसी पूरे देश में भी लग सकती है, किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक एरिया में भी लग सकती है, ठीक है। सो नेशनल इमरजेंसी के ग्राउंड्स क्या क्या है? अच्छा, पहले तक बिफोर 1975 ग्राउंड से आपके वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, पहली बात वॉर हो गया पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ, तो नेशनल इमरजेंसी लग सकती है। अच्छा, वॉर जरूरी नहीं है, वॉर एक लीगल टर्म होता है, ठीक है। एक्सटर्नल एग्रेशन, जैसे मान लो पाकिस्तान ने हमेशा की तरह कोई हमला कर दिया, वॉर ऐसे नहीं होते हैं, ठीक है। वॉर के लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है, ऑफिशियल डिक्लेरेशन होता है। इंडिया पाकिस्तान में लीगली कभी वॉर नहीं हुआ, ठीक है। अगर इंटरनेशनल लॉ की डेफिनेशन के हिसाब से, इफ वी गो बाय द इंटरनेशनल लीगल डेफिनेशन, इंडिया एंड पाकिस्तान हैज नेवर डेल्व इनटू अ वॉर, इट वाज अ मेयर एक्सटर्नल एग्रेशन, ठीक है। इंटरनल एक्सटर्नल एग्रेशन के बेसिस पे इसको इमरजेंसी लगाई जा सकती है। अच्छा, पहले एक 1975 से पहले एक टर्म हुआ करता था, इंटरनल डिस्टरबेंस। अब इंटरनल डिस्टरबेंस काफी सब्जेक्टिव है, किसी भी चीज को आप इंटरनल डिस्टरबेंस कर दो। 1975 में यही हुआ था, इंदिरा गांधी लॉस्ट द इलेक्शन, उनको लगा कि अब सिचुएशन बिगड़ रही है, तो उन्होंने इंटरनल डिस्टरबेंस के टाइम पे नेशनल इमरजेंसी लगा दी, ठीक है। उसके बाद 1976 में 78, आई बेग द पार्डन, 1978 में इसको चेंज किया गया एंड इसको आर्म्ड रिवेलियन से चेंज किया गया। गेटिंग माय पॉइंट? पहले इट वाज इंटरनल डिस्टरबेंस व्हिच वाज वेरी वेरी सब्जेक्टिव, नाउ इट चेंज टू आर्म्ड रिवेलियन। अगर ग्राउंड आता है कोई भी, यू विल सी कि आर्म्ड रिवेलियन है क्या, मतलब बेसिकली वॉर होना चाहिए, ईदर फ्रॉम आउटसाइड और फ्रॉम इनसाइड, ठीक है। या तो पाकिस्तान चाइना ने वॉर किया हो, या फिर इंडिया में बहुत ज्यादा सिविल वॉर वाली सिचुएशन बन गई हो, जस्ट बिकॉज कि आप इलेक्शन हार गए, जस्ट बिकॉज कि आपको डिफरेंट पॉलिटिशियन से यू गॉट अफ्रेड, ठीक है, एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ, यू कांट टेक द बेनिफिट ऑफ दिस टर्म। अच्छा, एक और चीज कि इस इमरजेंसी को पार्लियामेंट से पास होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है दैट कि नरेंद्र मोदी जी आएंगे एंड ही विल डिक्लेयर द नेशनल इमरजेंसी। इसको अप्रूवल जरूरी है, कहां से? लोकसभा और राज्यसभा से, उसके बाद ही प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी अप्रूव करते हैं। आया समझ में? नेशनल इमरजेंसी क्लियर हुआ सभी को? जल्दी बताओ यार, बहुत कुछ डिस्कस करने को है, टाइम है कम, ठीक है। क्विकली, करण, रुद्राक्ष, पूर्वी, ठीक है सर, कैन यू प्लीज रिपीट शॉर्टली? ओके, देखो बेटा, नेशनल इमरजेंसीज का टर्म समझ जाओ कि नेशनल लेवल पे जो इमरजेंसी होती है, नेशनल लेवल पे इमरजेंसी मतलब इंडिया के किसी भी कॉर्नर में, इवन पूरे इंडिया में नेशनल इमरजेंसी आप लगा सकते हो। अब इसके ग्राउंड क्या क्या हो सकते हैं सर? इसके ग्राउंड है, पहले तो किसी से वॉर हो गया हो, एक्सटर्नल वॉर, ठीक है, एक्सटर्नल एग्रेशन और वॉर हो गया हो आपका पाकिस्तान से, चाइना से। अब मैं पाकिस्तान चाइना से वॉर नहीं करना है, बट जस्ट दे आर नेबर, इट इज नॉट पॉसिबल कि हमारा किसी बाहर की कंट्री से वॉर हो जाए। पॉसिबिलिटीज रहती हैं कि आपके नेबर्स से आपका वॉर होता है। नेपाल और बांग्लादेश आर नॉट इन सिचुएशन वेयर दे कैन हैव अ वॉर विद इंडिया, ठीक है। सो बिकॉज वी हैड अ वॉर विद चाइना एंड पाकिस्तान प्रीवियसली, हम लोग उसी से समझते हैं। 1962 में, 1961-62 में वी हैड अ वॉर विद चाइना। उस टाइम पे हमारी नेशनल इमरजेंसी लगी थी ऑन द ग्राउंड ऑफ एक्सटर्नल एग्रेशन, ठीक है। 1975 में जो इमरजेंसी लगी थी, भाई कोई वॉर तो नहीं हुआ था 1975 में, सर फिर क्यों इमरजेंसी लगाई? इमरजेंसी लगाई दूसरे ग्राउंड पे, दैट वाज इंटरनल डिस्टरबेंस। अब इंटरनल डिस्टरबेंस को मिसयूज किया जा सकता है, भाई किसी भी चीज को आप इंटरनल डिस्टरबेंस कर दो। आज अगर इफ इमेजिन वी ऑल स्टार्ट प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर, वो बोल देंगे भाई ये डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे हैं इंटरनली, इमरजेंसी लगा दो। 1975 में यही हुआ था। सो 1978 में इस टर्म को मोरारजी देसाई ने चेंज कर दिया। नाउ द इंटरनल डिस्टरबेंस वाज रिप्लेस्ड बाय
आर्म्ड रिबेलियन, अगर इंडिया में सिविल वॉर वाली जैसी सिचुएशन आती है, मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट एंड दी अदर गवर्नमेंट स्टार्ट फाइटिंग, राइट, नक्सलाइट्स बहुत ज्यादा दम पे फैल जाए, देन इन दैट केस द गवर्नमेंट में इम्प्रूव नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी कौन अप्रूव करता है? इट इज द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ही अप्रूव करते हैं नेशनल इमरजेंसी। किसके कहने पे? प्राइम मिनिस्टर के कहने पे नहीं करते। 1975 में जो इमरजेंसी लगी थी वो प्राइम मिनिस्टर के कहने पे लगाई गई थी, जबकि नाउ प्राइम मिनिस्टर के कहने पे इमरजेंसी नहीं लगती है। लोकसभा राज्यसभा जब तक अप्रूव करते हैं देन ओनली योर इमरजेंसी विल बी इम्पोज्ड। ठीक है, 1 महीने का टाइम होता है, इमरजेंसी लगने के बाद आपको 1 महीने के अंदर लोकसभा राज्यसभा से उसको अप्रूव करवाना पड़ेगा। अब सर इमरजेंसी में होता क्या है? इमरजेंसी में ये होता है कि जितनी भी आपकी स्टेट गवर्नमेंट होती हैं वो सस्पेंड हो जाती हैं। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट काम करना बंद कर देती हैं, कोई मुख्यमंत्री नहीं होगा, कोई चीफ मिनिस्टर काम नहीं करेगा, कोई मंत्री काम नहीं करेगा। काम कौन करेगा? सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उनको कौन एडवाइस करेगा? प्राइम मिनिस्टर और उनकी कैबिनेट। ठीक है, आया समझ में? पूरे देश पे जहां जहां पे नेशनल इमरजेंसी लगी होगी वहां पे प्रेसिडेंट विल फंक्शन। गेटिंग माय पॉइंट? दूसरा टर्म आता है प्रेसिडेंट रूल। अपन ने बहुत सुना है, ये बहुत ज्यादा डिबेटेबल इशू है, बहुत ज्यादा सिचुएशन में आता है। प्रेसिडेंट रूल में क्या होता है सर? प्रेसिडेंट रूल में ये होता है कि किसी भी एक स्टेट को, अच्छा नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे आपके फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाते हैं, ये ध्यान रखना। फंडामेंटल राइट है आपके, आपको बोलने का राइट, आपको आर्टिकल 2021 नहीं होता है ऑब्वियसली, राइट टू लाइफ विल रिमेन विद यू फॉर एवर। ठीक है, बाकी अब आप वॉर की सिचुएशन चल रही है तो आप ये नहीं बोल सकते कि सर मुझे तो बॉर्डर पे जाकर के रहना है। ठीक है, सो इन नेशनल इमरजेंसी योर फंडामेंटल राइट्स आर सस्पेंडेड। अच्छा ध्यान करो, मैंने एडीएम जबलपुर का केस पढ़ाया था। व्हाट हैपेंड इन दैट केस? याद करो कि फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो गए थे, कोर्ट ने बोल दिया कि कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। ठीक है, रिकॉल करना पड़ेगा। नाउ अब आते हैं अपन किस पे? प्रेसिडेंट रूल पे। प्रेसिडेंट पहले क्या होता था देखो, 1967 69 तक इंदिरा गांधी वाज दी प्राइम मिनिस्टर। सभी जगह पे कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, स्टेट गवर्नमेंट में। धीरे 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 जनता पार्टी बीजेपी की गवर्नमेंट आना स्टार्ट हुई स्टेट में। अब वी हैव ऑल सीन अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी जी का टसल चलता है, वी हैव सीन स्टैलिन जो है उनका टसल चलता है, केरल गवर्नमेंट का टसल चलता है, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का टसल चलता है। तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट व्हेन दे बिलोंग टू डिफरेंट कैटेगरी द टसल इज वेरी वेरी ऑब्वियस। ठीक है, नाउ इंदिरा गांधी सेड समथिंग टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश एंड द पर्सन रिफ्यूज्ड। भाई जो मेरे डोमेन में होगा स्टेट लिस्ट में वो तो मैं करूंगा, आप कैसे, हाउ वुड यू एडवाइज मी? बट भाई फिर ईगो, यू आर हर्टिंग द ईगो, है ना? सो इट वाज वेरी सब्जेक्टिव दैट लॉ एंड ऑर्डर की कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल होना, इसमें एक ग्राउंड होता है कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल होना, फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। अब बताओ कितना कितना वेग टर्म है ये। एज अ लॉ स्टूडेंट दिस इज वेरी, यू विल अंडरस्टैंड दैट दिस इज अ वेरी वेग टर्म। आप किसी भी चीज, अच्छा नरेंद्र मोदी जी ने फोन करके बोला कि ये टास्क कर दो, उन्होंने बोला सर हम नहीं करेंगे, हमारे हमारे आपके डोमेन में नहीं आता, हम करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल, हटाओ, गवर्नमेंट सस्पेंड। 1992 तक यही चलता था। अच्छा सब लोग बोलता है कि सर प्रेसिडेंट रूल लगा दो, गवर्न वहां पे बंगाल में प्रेसिडेंट रूल लगा दो, प्रेसिडेंट रूल लगा दो। अब इतना डिफिकल्ट क्यों है? व्हाई इट इज सो डिफिकल्ट नाउ? अच्छा पहले ऐसे ही लगा देते थे, मध्य प्रदेश की, कर्नाटक की, राजस्थान की, उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में बाबरी डिमोलिशन हुआ था, प्रेसिडेंट रूल लगाया गया था 1992 में ऑन द नेम ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। ठीक है, अच्छा आज की डेट में इस टर्म को यूज करके स्टेट ऑफ एमपी, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में, अच्छा उद्धव ठाकरे तो बात नहीं मानते थे मोदी जी की, व्हाई डिडंट दे इंपोज प्रेसिडेंट रूल?
Why are not they imposing president rule in Delhi? Why are not they imposing president rule in Kerala, वेस्ट बंगाल? अच्छा, वेस्ट बंगाल में तो रोज पिट रहे हैं बेचारे बीजेपी वाले, क्यों नहीं लगा रहे सर आप प्रेसिडेंट रूल? बिकॉज 1992, चैट बॉक्स में देखो, 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने SR बोमई केस, कर्नाटका के जो सीएम है उनके फादर, ही वाज SR बोमई, इनके फादर वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटक, ठीक है। 1992 में प्रेसिडेंट रूल लगा दिया वहां पे बिना किसी बात के, सुनी नहीं, फोन किया, माने नहीं, प्रेसिडेंट रूल लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यार ये गलत हो रहा है। जैसा मैंने बताया, लॉ इज वेरी डायमेंशनल, इट चेंजेस विद टाइम। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये गलत हो रहा है। अब से जब भी प्रेसिडेंट रूल लगेगा हम लोग चेक करेंगे सही लगा या नहीं लगा। 1992 के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसको जुडिशियल रिव्यू का पार्ट बना दिया। आया समझ में? अब ऐसा ही नहीं लगता प्रेसिडेंट रूल, अब आपको प्रॉपर रिटन गाइडलाइंस देनी पड़ती है कि इन ग्राउंड पे हम लोग प्रेसिडेंट रूल लगा रहे हैं और ये प्रेसिडेंट रूल लगा। अच्छा, अगर बंगाल में लगा देते हैं प्रेसिडेंट रूल तो वो चैलेंज हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट के सामने, और सुप्रीम कोर्ट बोल देगा तो कोई ग्राउंड ही नहीं है आपके पास। बहुत स्ट्रॉन्ग ग्राउंड चाहिए अब किसके लिए? प्रेसिडेंट रूल लगाने के लिए, ठीक है। अगर मान लो वेस्ट बंगाल में प्रेसिडेंट रूल लगता है और प्रेसिडेंट रूल लगता है और सुप्रीम कोर्ट बोल देती है कि सही लगा है, नाउ अगेन सिर्फ वेस्ट बंगाल में प्रेसिडेंट रूल फंक्शन करेगा। नेशनल इमरजेंसी में किसी भी जगह पे लगा सकते हैं प्रेसिडेंट रूल, और स्टेट इमरजेंसी में सिर्फ एक पर्टिकुलर स्टेट में लगाते हो आप, ठीक है। अब उस स्टेट में कोई चीफ मिनिस्टर नहीं होगा, कोई भी सस्पेंड हो जाएंगे, मतलब ममता बनर्जी जी सस्पेंड हो जाएंगी, उनके मिनिस्टर सस्पेंड हो जाएंगे। नाउ अब लॉ कौन बनाएगा? पार्लियामेंट लॉ बनाएगा, ठीक है। अभी प्रेसिडेंट रूल कहां पे लगा हुआ है, कोई बताएगा मुझे जल्दी से, 1 मिनट में? जल्दी। सो गए क्या? एम आई ऑडिबल? जम्मू कश्मीर में भी प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है। प्रेसिडेंट रूल का टेन्योर 1 साल का होता है, ध्यान रखना, 1 साल का। 1 साल से ज्यादा प्रेसिडेंट रूल नहीं लगा सकते। फिर सर 2019 में प्रेसिडेंट रूल लगा था जम्मू कश्मीर में, अब तो 2022 हो गया, इसमें भी एक एक्सेप्शन है। 1 साल के अंदर आपको प्रेसिडेंट रूल हटाना पड़ेगा, लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन ये बोल देता है कि अभी इलेक्शन नहीं हो सकते तो इसको एक्सटेंड कर सकते हो आप 3 साल तक। आया समझ में? आ रहा है किसी को? कोई डाउट आया? नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी। अब स्टेट इमरजेंसी में भी क्या होता है कि लॉ कौन बनाता है? अब जम्मू कश्मीर के लिए लॉ कौन बना रहा है? पार्लियामेंट, ठीक है। जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा जी, he is functioning as a agent of the president of India। बेसिकली वहां पे प्रेसिडेंट रूल है। प्रेसिडेंट रूल 1 साल के लिए होता है, लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन ये बोल देती है कि सर 3 साल से ज्यादा, मतलब हम लोग अभी इलेक्शन नहीं करा सकते जम्मू कश्मीर में, तो इसको 3 साल तक एक्सटेंड कर सकते हो आप, ठीक है। आया समझ में? थर्ड इज फाइनेंशियल इमरजेंसी। अब बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन की सिचुएशन बढ़ जाए, जैसे जिम्बाब्वे में हुआ है ना, जिम्बाब्वे में हुआ था, जिम्बाब्वे की जैसे सिचुएशन बन जाए तो आप क्या करेंगे? फिर आपको फाइनेंशियल इमरजेंसी लगानी पड़ेगी। ये पूरे देश में लगती है। अच्छा, इसका कोई ऐसा नहीं है कि स्टेट में लगेगी या फिर किसी स्टेट में लगेगी या फिर किसी डिस्ट्रिक्ट में लगेगी, नहीं, ये पूरे देश में लगेगी। कोविड के टाइम पे बहुत बोल रहे थे लोग के फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा दो, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा दो। 1991 में सिचुएशन इमर्ज हुई थी जिसमें फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाने की बात हुई थी, बट अभी तक नहीं लगाई गई है। फाइनेंशियल इमरजेंसी में क्या होता है कि जितने भी ऑफिसर्स होते हैं उनकी सैलरी कम कर देते हो आप, पैसे को सेव करने के लिए। जैसे प्रेसिडेंट को अभी 5 लाख रुपए लेते हैं, उनको 2.5 लाख कर दो। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को 2.5 लाख मिलते हैं, उनको 2 लाख कर दो। तो आप यहाँ पे कैनन मेजर
करते हो, पैसे छापना कम कर दो, पैसे छापना ज्यादा कर दो, तो ये सब कैनन्स आप फाइनेंशियल इमरजेंसी में यूज करते हो। आया समझ में? अभी किसी को डाउट है प्रेसिडेंट पे पूरा? अच्छा, ये बहुत इजी है। जैसा मैंने बताया था कि कंटिजेंसी फंड होता है, इंडियन गवर्नमेंट का सारा पैसा 3 फंड में होता है, ठीक है, जिनमें से एक कंटिजेंसी फंड होता है, एक कंसोलिडेटेड फंड होता है और एक पब्लिक अकाउंट्स फंड होता है, ठीक है। गवर्नमेंट जब भी किसी को लोन देती है, जैसे मान लो हम लोगों ने लोन दिया बांग्लादेश को, एंड बांग्लादेश हमको एज अ इंटरेस्ट के साथ जो लोन पे करता है, वो आपका किस में जाता है? कंसोलिडेटेड फंड में। समझ में आ रहा है? गवर्नमेंट ने किसी से लोन लिया, वर्ल्ड बैंक से लोन लिया, तो वो कंसोलिडेटेड फंड में आ जाएगा। जो टैक्स आप फाइल करते हो, इनकम टैक्स, वो आपका कहां जाता है? कंसोलिडेटेड फंड में जाता है, ठीक है। जितने भी आपके गवर्नमेंट का, जो भी गवर्नमेंट पैसे रिसीव करती है, वो कंसोलिडेटेड फंड में जाता है। और जो बजट में जो पैसा लगता है, वो पैसा भी आपका कंसोलिडेटेड फंड, लिख लो, कंसोलिडेटेड फंड, ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड से निकलता है। दूसरा फंड होता है आपका कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। कंटिजेंसी फंड में क्या होता है कि 1,000 करोड़, 10,000 करोड़, 15,000 करोड़ रुपए एक कंटिजेंसी सिचुएशन के लिए रखे रहते हैं। जैसे कोविड, जैसे असम में बाढ़ आ गई, तो मोदी जी अनाउंस्ड 1,000 करोड़ का रिलीफ पैकेज। सर वो कहां से निकला? वो निकला कंटिजेंसी फंड से, ठीक है। कंटिजेंसी फंड समझ में आया? एक होता है पब्लिक अकाउंट्स। अब जो पब्लिक से जो पैसा जाता है, जैसे मान लो आज मेरे ऊपर जुर्माना लगा किसी चीज का, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट में किसी ने मेरे ऊपर जुर्माना लगा किसी एक्ट के अंदर, लॉ के अंदर, वो पैसा कहां जाएगा सर? वो जाएगा पब्लिक अकाउंट में, ठीक है। जो पब्लिक फंड होता है उसमें जाता है। 3 तरीके के फंड होते हैं, ठीक है। अब अगर आपको पब्लिक अकाउंट में से और कंसोलिडेटेड फंड में से पैसा निकालना है, तो आपको प्रेसिडेंट का अप्रूवल लेकर के लॉ बनाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि एक लॉ होता है आपका बजट। बजट को पहले कौन अप्रूव करता है? प्रेसिडेंट अप्रूव करते हैं। आप उसको पार्लियामेंट में लेकर के आते हो, पार्लियामेंट में निर्मला सीतारमण जी बोलती हैं, फिर वो बिल पास होता है, ठीक है। वो भी एक बिल होता है, ठीक है, वो बिल पास होता है, देन उस बिल को आप अप्रूवल मिल जाता है। कंटिजेंसी फंड में ऐसा नहीं होता है। कंटिजेंसी फंड में सिर्फ एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकालते हैं प्राइम मिनिस्टर कि सर हमको इतना इतना पैसा हम लोगों ने स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया है बिकॉज ऑफ ड्यू टू दिस इमरजेंसी, और आप इसको दे दो, ठीक है। अगेन मनी बिल, जैसा मैंने बताया, बजट मनी बिल होता है, जीएसटी भी एक मनी बिल है बिकॉज वो पैसे से लेन देन कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका फाइनेंस कमीशन, मैंने जैसा बताया था फाइनेंस कमीशन का टास्क। नेक्स्ट इज डिप्लोमेटिक पावर। जब भी कोई ट्रीटी साइन होती है, अच्छा एक बात बता दूं, अभी कल चीता आए थे इंडिया में, आए थे, सबको पता है। एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ था नामीबिया के साथ में, ठीक है। तो वो नामीबिया के साथ जो साइन हुआ होगा वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पे ही साइन होता है, ठीक है। इंडिया की जितनी भी ट्रीटी है, जैसे कोई भी ट्रीटी साइन करती है, जैसे मान लो वियना कन्वेंशन साइन किया हम लोगों ने, पेरिस कन्वेंशन, ठीक है। तो सारे कन्वेंशन जितने भी साइन होते हैं, वो साइन कौन करता है? इंडियन अम्बेसडर जो वहां पे बैठे हुए हैं, और वो किसके नाम पे साइन करते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पे। जितने भी फॉरेन ऑफिसर, फॉरेन एम्बेसडर्स हैं, दे आर ऑल आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। अकबरुद्दीन का नाम सुना है? सैयद अकबरुद्दीन, जो यूएन में आपके परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव थे इंडिया के, वो कौन की काम करते हैं? ही इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आया समझ में? नेक्स्ट इज मिलिट्री पावर। सर मिलिट्री पावर क्या होती है? मिलिट्री पावर ये होती है कि आर्म फोर्स, नेवी और एयरफोर्स, सबका हेड कौन होता है? हेड होता है प्रेसिडेंट, ठीक है, कमांडर इन चीफ जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो होते हैं आपके प्रेसिडेंट। अच्छा, अपॉइंटमेंट भी वही करते हैं चीफ की, आर्मी चीफ, नेवल चीफ, और आपके किसकी?
एयरफोर्स की चीफ। ठीक है, अब प्रेसिडेंट के साथ एक और अपन पढ़ लेते हैं, उसके बाद प्रॉब्लम बताऊंगा कि क्या प्रॉब्लम है प्रेसिडेंट की पोस्ट के साथ। अच्छा, अब प्रेसिडेंट को कुछ कुछ जुडिशियल पावर भी है, पार्डनिंग पावर। आप लोगों ने कभी नाम सुना होगा सर, पार्डनिंग पावर क्या होता है? पार्डनिंग पावर, अच्छा निर्भया के एक्यूज को जब डेथ सेंटेंस हो गई थी, देन ही सडनली फाइल्ड अ पिटीशन बिफोर द प्रेसिडेंट। पार्डनिंग पावर, पार्डनिंग पावर ये होती है कि सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने अगर अफर्म कर दिया है डेथ सेंटेंस, डेथ सेंटेंस अगर दे दिया है, देन प्रेसिडेंट के पास आप जा सकते हो उसको कंडोन कराने के लिए। ठीक है, प्रेसिडेंट के पास आप जा सकते हो कंडोन कराने के लिए कि सर मैंने, मेरे ये सरकमस्टांसेस थे, मैं, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, ये सब चीजें, जो भी सरकमस्टांसेस आप उनको लिख करके आप प्रेसिडेंट को भेजते हो, प्रेसिडेंट उसको कंसीडर कर सकते हैं, हो सकता है कंसीडर नहीं करें। ठीक है, प्रेसिडेंट अगर कंसीडर करेंगे तो वो छोड़ देंगे, प्रेसिडेंट अगर कंसीडर नहीं करेंगे तो वो आपको फांसी होगी। निर्भया वाले केस में प्रेसिडेंट ने कंसीडर नहीं किया था। ठीक है, आया समझ में? गेटिंग माई पॉइंट नाउ? अब कौन कौन से लॉ में प्रेसिडेंट, अच्छा ये पावर गवर्नर को भी होती है, पार्डनिंग पावर गवर्नर को भी होती है, बट गवर्नर को डेथ सेंटेंस में पावर नहीं होती। डेथ सेंटेंस और कोर्ट मार्शल, मान लो कोई एक लेफ्टिनेंट है, उन्होंने जम्मू कश्मीर में कुछ लोगों को, सिविलियंस को मार दिया, कोर्ट मार्शल ने उनको पनिशमेंट दे दी कि आप 4 साल के लिए जेल में जाओगे। ठीक है, आपकी नौकरी जाएगी, आप 4 साल के लिए जेल में जाओगे। ही कैन राइट टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू सीक पार्डन। ठीक है, अब पार्डन में वो लिख सकते हैं, वो गवर्नर को नहीं लिख सकते। कोर्ट मार्शल की पावर सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट को होती है। ठीक है, अब यूनियन लॉ, यूनियन लॉ क्या होता है? जैसे यूएपीए का सभी ने नाम सुना है, ये यूनियन लिस्ट का लॉ है। टेररिज्म से रिलेटेड जितने भी लॉज हैं वो यूनियन लिस्ट में आते हैं। ठीक है, सीबीआई डील करती है, एनआईए जिनके साथ डील करती है, उनके अगेंस्ट अगर पनिशमेंट मिलती है तो फिर आपको प्रेसिडेंट के पास जाना पड़ेगा, गवर्नर को इसमें पावर नहीं होती है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं, डेथ सेंटेंस की हो गई। ठीक है, अब प्रेसिडेंट के साथ सर प्रॉब्लम क्या है? एक मिनट, प्रेसिडेंट के साथ प्रॉब्लम ये है कि उनकी खुद की कोई विल नहीं होती। जितने भी टास्क वो करते हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड पे करते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होती है सर? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड होता है प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, जितने भी मिनिस्टर हैं, नरेंद्र सिंह तोमर, अश्विनी चौबे जी, जितने भी ऑल द ऑनरेबल मिनिस्टर, ये मिलके एक यूनियन कैबिनेट बनाते हैं। सबको पता है कैबिनेट क्या होती है? वो कैबिनेट एक जो भी लॉ बना देती है, जो भी एडवाइस देती है, वो प्रेसिडेंट को फॉलो करनी पड़ती है। ठीक है, कहां पे नेशनल इमरजेंसी लगेगी, कहां पे स्टेट इमरजेंसी लगेगी, प्रेसिडेंट, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बनेगा, यूपीएससी का चेयरमैन कौन बनेगा, ठीक है, ये सब की एडवाइस कौन देता है? आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, बेसिकली सीबीआई का चीफ अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। बट सीबीआई का चीफ कौन होगा ये कौन डिसाइड करेगा? यूनियन कैबिनेट। आ गया समझ में? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अभी किसी को डाउट है यहां पे? जल्दी से पूछ लो, क्योंकि ये आई एम डन विद दैट। प्रेसिडेंट में किसी को कोई क्वेश्चन है, क्विकली पूछ लो, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं। किसी को कोई डाउट नहीं है? शुड आई प्रोसीड? चलिए आगे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। आपने एक टर्म सुना होगा सर, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज क्या होता है? पार्लियामेंट्री प्रिविलेज के बारे में सुना है किसी ने? कोई बता सकता है? हल्के में, बहुत हल्के में।
इंटरेक्टिव नहीं है यार बच्चे। चलो मैं ही बता देता हूँ। पार्लियामेंट की जो मेंबर्स होते हैं, मेंबर, अच्छा ये यहीं से समझ लो, ये एमएलएस को भी होता है, जो आपकी स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उसमें भी सेम चलता है। पार्लियामेंट्री प्रिविलेज उनको भी होता है, एमएलएस को भी होता है और एमपीस को भी होता है। सर पार्लियामेंट्री प्रिविलेज दिए क्यों? यार अगर एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मैं ये सोचूंगा कि मुझे मोदी जी से क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, राहुल गांधी जी से क्या पूछना चाहिए, क्या नहीं पूछना चाहिए, तो फिर मेरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने का मतलब ही क्या है? आई एम रिप्रेजेंटिंग 5 to 10 लाख पीपल। व्हाट इज द पर्पज? स्मूथ फंक्शनिंग हो सके, वो लोग एक दूसरे से बात कर सकें, अच्छे से डिस्कशन कर सकें, इसलिए आपको पार्लियामेंट्री प्रिविलेज दिए गए हैं। पार्लियामेंट्री प्रिविलेज दो तरीके के होते हैं बच्चों। पहला एक जो एज ए इंडिविजुअल मेंबर मुझे मिला है, और सेकेंड एज अ पार्लियामेंट हाउस जो पूरे हाउस को मिला है। आया समझ में? मुझे क्या क्या मिला है पहले समझते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच, मैं कुछ भी बोल सकता हूं पार्लियामेंट में, मेरे पे इंक्वायरी और नहीं होगी। जैसे मान लो मैंने कहा पार्लियामेंट में चौकीदार चोर है, इस चीज पे कभी भी कार्यवाही और कोई भी एक्शन नहीं होगा, बिकॉज आई सेड दिस इन पार्लियामेंट। ठीक है, बट इसमें एक एक्सेप्शन है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज का कंडक्ट आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। अब पार्लियामेंट्री प्रिविलेज का नाम मतलब ये नहीं है दैट आई स्टार्ट अब्यूजिंग अ सुप्रीम कोर्ट जज, दैट ही इज अ ब्राइबर या वॉट एवर वी कैन से। ठीक है, ये एक एक्सेप्शन बनता है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेज है और दे स्टार्टिंग डिस्कसिंग द कंडक्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज, और वो लोग इस चीज पे बात कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो सर नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ मुझे, एक होमवर्क है आप लोगों के लिए, प्लीज नोट कर लेना यार सब लोग। ठीक है, नोट कर रहे हो सब लोग? दो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, करोगे सॉल्व? अगली क्लास में फिर मैं आंसर बता दूंगा उसका। कोई बोलेगा? यस। Yes, sir. कर्नाटका में, कर्नाटका लेजिस्लेटिव असेंबली में, और आई थिंक बिफोर 1 year back in British Parliament, a member was watching porn. Whether is it a part of freedom of speech in Parliament? जब आप क्लियरली बोल चुके हो कि देयर इज नो एक्सेप्शन एक्सेप्ट द कंडक्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज, क्या ये चीज पार्लियामेंट्री प्रिविलेज में आएगी? इस पर रिसर्च करना। ठीक है, जो भी मुझे इसका आंसर बताएगा सही तरीके से, ऑफलाइन क्लास में आके चॉकलेट दूंगा। ठीक है, ये होमवर्क है। ठीक है, सेकेंड, ये हुआ था और ये क्वेश्चन में आया था, ब्रिटेन में द मिनिस्टर रिजाइन मोरली नॉट लीगली। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन मेरा मैं देता हूं। आई एम द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, मेरे अगेंस्ट में नो कॉन्फिडेंस मोशन आया। एक नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है जिसमें 1/10 सुनना ध्यान से, 1/10 मेंबर स्पीकर को लिख देते हैं कि सर नरेंद्र मोदी जी हैज लॉस्ट द मेजोरिटी। ठीक है, अभी तो जैसे बीजेपी के 313 लोग जीते हैं, बट 90 वाला जो टाइम था आप लोगों ने देखा होगा, आफ्टर द डेथ ऑफ राजीव गांधी सारी सरकार ऐसे चलती थी। अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बने थे, एक दिन में गिर गई है ना, 13 दिन में प्राइम मिनिस्टर की सरकार गिर गई उनकी। क्यों गिर गई थी वो? नो कॉन्फिडेंस मोशन की वजह से। बिकॉज अगर आप लोगों को 272 मेजोरिटी नहीं मिलती है, फिर आपको इधर उधर से नीतीश कुमार का साथ ले लिया, नवीन पटनायक का ले लिया, इसका ले लिया, उसका साथ ले लिया। सो इन दैट केस देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट दे मे रिवोक। महाराष्ट्र में यही हुआ था। ठीक है, महाराष्ट्र में क्या हुआ था? उद्धव ठाकरे वाज इन मेजोरिटी, अब उद्धव ठाकरे के लोगों ने ही मेजोरिटी का सपोर्ट वापस ले लिया, माइनॉरिटी में आ गई सरकार। ठीक है,
सो इन दैट केस यू आर नॉट गेटिंग द सपोर्ट ऑफ द एमएलएज, मतलब आउट ऑफ 500 you need the support of 251, वन above the half. मध्य प्रदेश में 230 एमएलए हैं तो मेजोरिटी बनती है 116 पे। अब अगर बीजेपी के पास 120 है तो ठीक है, बट अगर 110 होते हैं तो उनको 6 लोगों का साथ चाहिए होगा, और अगर वो 6 लोग साथ छोड़ देते हैं तो यू विल बी इन द माइनॉरिटी, आपकी सरकार चली जाएगी, यू विल नॉट बी द चीफ मिनिस्टर। ये महाराष्ट्र में हुआ था। आया समझ में? अब अगर मान लो एक सिचुएशन में देता हूं आपको, उद्धव ठाकरे जब एमएलए चले गए थे कहां पे, असम, एक फ्लोर टेस्ट के बारे में सबको पता है। फ्लोर टेस्ट होना था, मतलब सारे एमएलए इकट्ठे होंगे और वो लोग वोट डालेंगे तब पता चलेगा कि उद्धव ठाकरे को कितने वोट हैं और एकनाथ शिंदे के पास कितने वोट हैं। जिसको भी हाफ से एक ज्यादा मिल जाएगा ही विल बी द चीफ मिनिस्टर। ठीक है, अब अगर ध्यान से सुनना क्वेश्चन, उद्धव ठाकरे को यह लग रहा था कि मैं सपोर्ट नहीं मिलेगा मुझे, ठीक है, अब उन्होंने ये बोला, बीजेपी, उनको लगा कि यार मेरे पास 10 एमएलए कम है, उन्होंने बीजेपी के 10 एमएलए को फोन किया कि मैं तुम्हें 50 करोड़ रुपए दूंगा। बीजेपी को नहीं दिया, किसी एक पार्टी को दिया जिनके पास 10 ही एमएलए थे, उन 10 एमएलए को कांटेक्ट कर लिया उन्होंने। ठीक है, उन्होंने बोला कि मैं सबको 50 करोड़ दूंगा। ठीक है, पूरी पार्टी को कितने दूंगा, 500 करोड़, आप वोट देना मेरे फेवर में। और उन्होंने वोट दिया नहीं दिया, दिस इज अ सेपरेट क्वेश्चन। इज इट अ पार्लियामेंट्री प्रिविलेज? बताओ कोई क्वेश्चन समझ में आया? बोलेगा कोई? नो। पैसे देना, ब्राइब देना पार्लियामेंट्री प्रिविलेज का पार्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने एडमिट किया है। लिंक भेजूंगा। पीवी नरसिम्हा राव, पता है, जानते हो, चीफ मिनिस्टर थे। पीवी नरसिम्हा राव वाज द चीफ प्राइम मिनिस्टर, सॉरी, ठीक है, he thought that there is a possibility that I might lose the no confidence motion. He contacted few MPs. He said, I will offer you bribe, vote for me. ठीक है, वो लोगों ने उनको वोट, मर अगर पार्टी चेंज होने पर पोस्ट चली जाती है ना, वो मैं अभी जस्ट इसके बाद जो टॉपिक आएगा रुद्र, वो अपन इस पे डिस्कस करेंगे। वो जो आपका 10 शेड्यूल है उसमें मैं अभी जस्ट बताऊंगा वो चीज, ठीक है, कि महाराष्ट्र वाला पूरा सिनेरियो मैं समझाऊंगा क्योंकि उसकी पॉसिबिलिटी है कि वो क्वेश्चन में आ जाएगा। ठीक है, राइट। सो दो चीजें हैं, पहला एक बुक जो वेदर वॉचिंग पॉर्न इनसाइड द हाउस इज प्रोटेक्टेड, ये देखना है। दूसरा, वेदर टेकिंग ब्राइब इज पार्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इन पार्लियामेंट, ये दो चीजें आपको देखनी है। ठीक है, मैं लिंक शेयर करूंगा, ट्राई करना कि आज आप ढूंढो उसको। ठीक है, नेक्स्ट, फ्रीडम ऑफ अरेस्ट। अच्छा, मुझे मान लो पार्लियामेंट का ये भी प्रोसीजर है कि आपको अटेंड करना पड़ेगा। 60 दिन तक लगातार आप वहां से गायब नहीं हो सकते। अब अगर सर मैं पार्लियामेंट में जाना है, मुझे मैंडेटरी है, और अगर मुझे कोई अरेस्ट करने आ गया तो नहीं, अरेस्ट नहीं हो गया। आप सिविल केसेस में ओनली, सिविल केसेस में पार्लियामेंट का जो सेशन होता है उससे 40 दिन पहले और पार्लियामेंट के 40 दिन बाद तक आपको अरेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, और अगर अरेस्ट करते भी हो तो आपको ओम बिरला को बताना पड़ेगा। ठीक है, इसमें भी एक्सेप्शन है कि भाई प्रिवेंटिव डिटेंशन जैसे मैंने बताया था कि पहले से ही प्रिवेंट करने के लिए डिटेन कर लेते हैं, उसमें ये नहीं लगता है। ठीक है, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज
आया समझ में? नाउ एक पूरे हाउस को एक पार्लियामेंट्री प्रिविलेज होता है। कई कई बार क्या होता है कि कोई कॉन्फिडेंशियल चीज डिस्कशन करनी होती है, तो वो लोग क्या करते हैं, जितने भी लोग मेंबर्स नहीं हैं उनको बाहर निकाल देते हैं, जाओ बाहर निकाल सकते हैं वो लोग, ठीक है, स्ट्रेंजर्स, ठीक है, ताकि वो लोग अच्छे से डिस्कशन कर पाए। अच्छा बहुत पहले तक ये होता था कि वो लोग कोई भी न्यूज चैनल पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग को पब्लिश नहीं करता था, अब करने लग गए हैं, क्योंकि अब तो सब जगह डिजिटलाइजेशन आ गया, इवन सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग ऑनलाइन स्टार्ट हो गई हैं, तो अब स्टार्ट हो गया है। बहुत पहले तक पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स को पब्लिश नहीं करते थे न्यूज में, ठीक है, आया समझ में पार्लियामेंट्री प्रिविलेज है। अब आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, किसी को कोई डाउट है इसमें? क्विकली पूछ लो, फिर एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करूंगा जो महाराष्ट्र में हुआ, वो एंटी डिफेक्शन लॉ। आधे घंटे पूरा ध्यान से सुनना। बताओ अभी किसी को डाउट है इस चीज में? पूरा अभी तक जो भी डिस्कशन किया है, किसी को कोई डाउट है? चल, एंटी डिफेक्शन लॉ, इस पे अगर क्वेश्चन आने का चांस है, बहुत अच्छे चांसेस हैं, इसलिए अगले आधे घंटे ध्यान से सुनना, ध्यान से, बहुत ज्यादा ध्यान से, ठीक है। जैसा मैंने बताया पार्लियामेंट्री प्रिविलेज में पीवी नरसिम्हा राव ने ऑफर कर दिया किसी को कि पैसे ले ले मुझे वोट दे देना। बीजेपी का मेंबर कांग्रेस को वोट दे रहा है, कांग्रेस का मेंबर बीजेपी को वोट दे रहा है, देन व्हाई डिड यू कंटेस्ट द इलेक्शन? व्हाई डिड यू कंटेस्ट द इलेक्शन? You won on the behalf of BJP. You won election on behalf of Congress. You need to be answerable. You need to be accountable to people. I fought an election on the ticket of BJP. I won. Now I am joining Congress. Am I not doing fraud with the people? Am I not? I am. इसलिए 1985 में एक एंटी डिफेक्शन का लॉ आया जिसमें बोला कि पार्टीज को जहां से इलेक्शन लड़ा है वहीं रहना पड़ेगा, ठीक है। पहली चीज बेसिक अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। अगर आप पार्टी चेंज करते हो अगले 5 साल तक, आप यू विल बी डिस्क्वालिफाइड, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। अब सर डिफेक्शन का एक्सेप्शन क्या है? 2/3 अगर जैसे मान लो अभी इस कोचिंग में कितने स्टूडेंट्स हैं? जस्ट अ सेकेंड, 27, ठीक है, 27 स्टूडेंट्स, मैं 28, सर एंड मैम, वी आर 30 लोगों की देयर इज अ पार्टी, ठीक है। वी कंटेस्टेड इलेक्शन, हम लोग 30 लोग, वी वॉन द इलेक्शन, ठीक है। नाउ जब हम लोग इलेक्शन जीते हैं, हम सबको वी सिंक टुगेदर, वी स्विम टुगेदर, ठीक है। हम लोग तैरेंगे भी साथ में, हम लोग डूबेंगे भी साथ में। अब बीजेपी ने ऑफर किया कि आप लोग हमारे में ज्वाइन कर लो। मेरे पास फोन आया, आपको चीफ मिनिस्टर बना देंगे, आप हमारी में आ जाओ, ठीक है। अब लीगली तभी होगा जब हम लोग 300 लोग बीजेपी को सपोर्ट कर दें, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं अकेला बीजेपी को सपोर्ट कर दूं, ऑल ऑफ यू 29 पीपल आर सपोर्टिंग योर इंडिपेंडेंट पार्टी, ऐसा नहीं हो सकता। या तो हम 300 लोग बीजेपी को सपोर्ट करें, जैसे एनसीपी ने किया, उद्धव ठाकरे को पूरी एनसीपी ने किया, या फिर कांग्रेस की तरह करेंगे, पूरे कांग्रेस ने किया, ठीक है। अगर आधे लोग डिसेंट करना चाहते हैं तो इसमें 2/3 लोगों को डिसेंट करना पड़ेगा। अच्छा अभी कल एक न्यूज आई थी, कांग्रेस के 9 एमएलए हैं गोवा में, 8 एमएलए ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। क्या वो लोग डिस्क्वालीफाई होंगे? जल्दी से बताओ, और आंसर चाहिए मुझे सबके। नो सर। वाई? सर बिकॉज वो 2/3 के ऊपर ही गया ना। 2/3 हमारे वाले जो केस में
if 20 people agrees to support the BJP, then the anti-defection law will not be invited. ठीक है, अच्छा, ऑलमोस्ट 55-54 MLAs थे शिवसेना के पास में, ठीक है, 40 to 43 members MLAs were with एकनाथ शिंदे, ठीक है, क्या डिस्क्वालीफाई कर सकते थे? नो। क्या डिस्क्वालीफाई हुए? नो। वो नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? बिकॉज वो इसी वजह से बच गए। आया समझ में? 2/3 मेंबर अगर सपोर्ट करते हैं मर्ज, या तो पूरी पार्टी मर्ज कर जाए, हम लोगों ने 30 ने, अब जैसे अमरिंदर सिंह ने डिसाइड किया है दैट ही विल बी मर्ज्ड विद बीजेपी, तो वो पूरी पार्टी मर्ज कर गई सर, पूरी पार्टी मर्ज कर ली। आया समझ में? अब अगर आधे लोग बोलते हैं कि नहीं करना है, आधे लोग करते हैं करना है, तो जो भी 2/3 होंगे वो डिसाइड करेंगे कि क्या चलेगा। अब डिस्क्वालीफाई करता कौन है? अब आप लोगों को ध्यान आ रहा होगा कि उद्धव ठाकरे ने एक लेटर लिखा था कि असम गए एमएलए को डिस्क्वालीफाई करो। किसको लिखा था? स्पीकर को। किसको लिखा था लेटर? स्पीकर को। अच्छा, अब इसमें एकनाथ शिंदे ने उल्टा दाव चल दिया। आउट ऑफ 54, 45 पीपल आर विद मी, आई एम द शिवसेना। अब जो 9 लोग बचे हुए हैं, रिमेनिंग 9 to 10 पीपल, उन लोगों ने अगर हमको वोट नहीं दिया तो उन लोगों को डिस्क्वालीफाई करो। कर सकते हैं, टेक्निकली समझ में आ रहा है ना? आया समझ में? अब हमारे सिचुएशन में 30 में से 20 पीपल डिसाइडेड कि हमको सपोर्ट करना है। अब वो 10 लोग डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। देयर इज अ हाई चांस कि शिवसेना के एमएलए डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे अब, जो उद्धव ठाकरे की साइड में है, क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ अब उन पे लगेगा। आया समझ में? अब सर स्पीकर तो हमेशा चीफ मिनिस्टर की साइड बोलेगा। पहले एकनाथ शिंदे के सारे एमएलए को डिस्क्वालीफाई कर दिया था स्पीकर ने, क्योंकि स्पीकर यूजुअली पार्टी का होता है। अब ओम बिरला, नरेंद्र मोदी जी को ही विल नेवर डिस्क्वालीफाई, ठीक है, ही विल ऑलवेज डिस्क्वालीफाई अ कांग्रेसी पर्सन। डाउट आया किसी का? 9 मिनिस्टर वाला सीन। अच्छा देखो रुद्राक्ष, 9 एमएलए थे कांग्रेस के गोवा में, 8 ज्वाइंट बीजेपी। 2/3 से ज्यादा है, 2/3 से ज्यादा है, वो लोग लीगली ज्वाइन कर सकते हैं। उद्धव ठाकरे वाले केस में यही हुआ था। शिवसेना के पास थे 54, ऑलमोस्ट 45-40 वहां पहुंच गए असम। अब ये 2/3 से ज्यादा हो गए। नाउ लीगली दे कैन एस्केप द डिस्क्वालिफिकेशन। अगर 5 लोग होते, 10 लोग होते, तो वो लोग डिस्क्वालीफाई हो जाते। सचिन पायलट वाले केस में याद है, सचिन पायलट मुख्यमंत्री नहीं बने बिकॉज उनके पास 2/3 मेजोरिटी नहीं थी। अच्छा एक और चीज ध्यान करो, ज्योतिरादित्य सिंधिया, याद है एमपी में भी डिफेक्शन हुआ था, 28 एमएलए रिजाइन किए थे। कांग्रेस के पास कितने एमएलए थे? ऑलमोस्ट 116 एमएलए थे कांग्रेस के पास में। 28 लोग ने सिंधिया जी के साथ में थे। अब सर उन पे तो एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाता, ठीक है। एंटी डिफेक्शन लॉ जब भी लगता है जब आप पार्लियामेंट में और हाउस में पहुंच के वोट करते हो अगेंस्ट में, ठीक है। अब मैं वोट ही नहीं करूंगा, मैं पहले रिजाइन करके दोबारा इलेक्शन लड़ लूंगा। एमपी में ये हुआ था, एमपी में उन 28 लोगों ने रिजाइन कर दिया। अच्छा एंटी डिफेक्शन लॉ तभी लगता है जब आप वोट कर देते हो, पहले एंटी डिफेक्शन नहीं लगता। मान लो एज ए एमएलए कमलनाथ लॉस्ट एंड शिवराज सिंह, बता रहा हूं बेटा, ठीक है। अब सर वो तो 28 ही थे, कांग्रेस के पास तो 116 लोग थे। 28 लोगों ने
28 लोगों ने तो फिर उन पे डिफेक्शन लगा, उनने वोट ही नहीं दिया, उन्होंने पहले ही रिजाइन मार दिया, दोबारा इलेक्शन लड़ लिया बीजेपी के टिकट पे, अब वो बीजेपी के मेंबर बन गए। आया समझ में? क्लियर था ये? बताओ जल्दी। इसीलिए उन पे डिफेक्शन नहीं लगा। डिफेक्शन तभी लगता है अगर क्वेश्चन आता है कि वोट कर दिया उन्होंने 2/3 से कम लोगों ने, देन ओनली इट वुड बी कम अंडर द एम्बिट ऑफ एंटी डिफेक्शन। अब मान लो एकनाथ शिंदे जी के साथ में सिर्फ 10 लोग जाते, फिर फ्लोर टेस्ट होता। फ्लोर टेस्ट मैंने बताया कि टेस्ट होता है, एक सारे एमएलए बैठे रहते हैं और वो टेस्ट करते हैं किसको कितनी मेजोरिटी है। अब अगर वो 10 लोग बीजेपी को वोट दे दे तो इन पे एंटी डिफेक्शन लग जाता, ठीक है। 2/3 पे एंटी डिफेक्शन नहीं लगता है वोट देने पे। एमपी में क्या हुआ था, उन्होंने वोट नहीं दिया, उन लोगों ने एमएलए से रिजाइन कर दिया, इलेक्शन लड़ लिया, बीजेपी से जीत कर मिनिस्टर बन गए, ठीक है। आया समझ में? ध्यान से सुनना। अब सर डिसाइड कौन करेगा कि डिस्क्वालीफाई करेंगे या नहीं करेंगे? डिस्क्वालिफिकेशन डिसाइड करता है स्पीकर, ठीक है। अब सर स्पीकर तो बीजेपी का है, बीजेपी अब शिवराज सिंह चौहान की यहाँ पे गवर्नमेंट है, गिरीश गौतम जी स्पीकर हैं, बीजेपी के मेंबर हैं, ओम बिरला जी बीजेपी के मेंबर हैं, तो सर वो डिस्क्वालीफाई क्यों करेंगे बीजेपी के मेंबर्स को? इस चीज को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते। पहले जुडिशियल रिव्यू का पार्ट नहीं था ये, लेकिन 1994 में खिहोतो होलान ये केस आया, सेम सिचुएशन। स्पीकर ने क्या किया? स्पीकर देखो, स्पीकर इंसान होता है यार, वो बीजेपी से इलेक्शन लड़ा है, बीजेपी ने उसको स्पीकर बनाया तो वो बीजेपी को फेवर करेगा। लेकिन अगर वो फेवर करता है, जैसे उन्होंने इन महाराष्ट्र इनिशियली उन लोगों ने एकनाथ शिंदे के साथ वालों को डिस्क्वालीफाई कर दिया था, चैलेंज किया था एकनाथ शिंदे ने सुप्रीम कोर्ट में, किया था। खिहोतो होलान में पहली बार ये बोला कि स्पीकर का डिसीजन आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो, अगर वो उसने डिस्क्वालीफाई किया है तो, और अगर वो डिस्क्वालीफाई नहीं कर रहा है तो। अगर ओम बिरला आज की डेट में बीजेपी के मेंबर को डिस्क्वालीफाई नहीं करते हैं तो कांग्रेस के लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, पहली चीज। अगर ओम बिरला किसी कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को डिस्क्वालीफाई कर देते हैं तो भी वो लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। आया समझ में? डिफेक्शन समझ में आया? एक बार जल्दी से बताओ चैट बॉक्स में सब लोग इस केस के बारे में थोड़ा सा पढ़ना, ठीक है। मैं लिंक भी शेयर करूंगा आज काफी सारी मैम को, ठीक है। किसी का कोई डाउट है? अच्छा सर, ग्राउंड्स क्या होते हैं? अब ग्राउंड सुन लो। मैंने इलेक्शन लड़ा बीजेपी से, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हूं, अकेला। मैंने बीजेपी छोड़ दी। अब अगर मैंने बीजेपी छोड़ दी तो फिर मैं बीजेपी को रिप्रेजेंट क्यों करूंगा? मैं वोट थोड़ी दूंगा बीजेपी को अगर मैंने बीजेपी छोड़ दी है। और अगर मैं वोट दे रहा हूं बीजेपी को तो फिर मैं बीजेपी छोड़ूंगा ही क्यों? अगर मैं बीजेपी छोड़ देता हूं या बीजेपी मुझे निकाल देती है अपनी पार्टी से, देन ऑटोमेटिकली यू विल बी डिस्क्वालिफाइड एज अ एमएलए और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। आया समझ में ये वाला पॉइंट?
ठीक है, दूसरी चीज, एक विहिप होता है, विहिप। ठीक है, एक विहिप होता है फॉर लेट्स से, जैसा मैंने बताया हम लोग 30 लोग मेंबर हैं, 30 लोगों की स्ट्रेंथ है हमारी। ठीक है, आई एम द चीफ विहिप ऑफ आवर पार्टी। ठीक है, अब मैंने बोला आप लोगों को, अच्छा एंटी डिफेक्शन लॉ सिर्फ 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 हाउस के अंदर वोट की बात कर रहा हूं। अब अगर मैंने बोला कि अपन लोग प्रोटेस्ट करना है अपने को नागपुर में रोड पे बैठ के, और अगर आप लोग नहीं आते हैं तो एंटी डिफेक्शन नहीं लगेगा, ध्यान रखना, है ना। पता चला कि मैंने बोला कि तोड़फोड़ करनी है कॉलेज में जाकर के, कुछ लोग नहीं आए और बोला एंटी डिफेक्शन लगो, नहीं। अब मैंने इंस्ट्रक्ट किया आप लोगों को कि टुमारो, कल एकनाथ शिंदे जी is going to discuss an important bill. We will support him. All of you required to attend and all of you are instructed to vote in favor of him. ये होता है विहिप। अब 30 में से जो जो लोग इसको फॉलो नहीं करेंगे दे विल बी डिस्क्वालिफाइड ऑटोमेटिकली। मैंने इंस्ट्रक्ट कर दिया, सपोज, ठीक है, आया समझ में। ओम डिसाइडेड दैट आई विल नॉट वोट इन फेवर ऑफ एकनाथ शिंदे। कैन ओम डू दिस लीगली? टेल मी क्विकली, कैन ओम डू दिस क्विकली? क्विकली बताओ जल्दी से एक बार। स्टूडेंट्स कम होते जा रहे हैं, जब स्टार्ट किया था तब स्ट्रेंथ वाज 30, नाउ इट इज 26। जल्दी बताओ, 26 भी सो रहे हैं या जग रहे हैं? सो गए, ठीक है यार, ओके। नो, इसका मतलब ओम विल बी डिस्क्वालिफाइड, ठीक है, लीगली। अब मैंने इलेक्शन लड़ा इंडिपेंडेंट, मैं किसी पार्टी से नहीं लड़ा, ठीक है। अब इंडिपेंडेंट हूं तो मैं किसी को भी वोट दे सकता हूं 100%। 2/3 की तो बात ही नहीं हो रही, ये तो पूरा 100% हो गया, मैं तो इंडिपेंडेंट हूं। अब एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट मैं बीजेपी का मेंबर बन गया। अब मेरे को वोट किस लिए दिए थे? क्योंकि मैं इंडिपेंडेंट मेंबर था। भाई बीजेपी के और कांग्रेस के कैंडिडेट को तो उन्होंने हराया ना। When they voted for me as an independent candidate, it means they didn't vote to BJP or Congress. And if I am joining BJP and Congress, it means I am doing injustice with the people. ठीक है, मैं ज्वाइन नहीं कर सकता। अब वोट देने का है 100% हूं मैं, भाई मैं सिंगल हूं, मैं किसी को भी वोट दे सकता हूं, ठीक है। नॉमिनेटेड मेंबर जस्टिस रंजन गोगोई, सचिन तेंदुलकर, ठीक है, जावेद अख्तर, MC मैरी कॉम, दे ऑल आर नॉमिनेटेड मेंबर, ठीक है। विद आज वो अपॉइंट हुए, आज वो अपॉइंट हुए, 6 महीने के अंदर अंदर दे कैन ज्वाइन एनी पार्टी, ठीक है। दे कैन ज्वाइन एनी पार्टी विद इन द 6 months ऑफ द नॉमिनेशन। Once the 6 months time period is lapsed, he can't join any political party. अच्छा, नॉमिनेटेड मेंबर्स भी इंडिपेंडेंट होते हैं, वो लोग किसी को भी वोट दे सकते हैं, ठीक है, मेरी तरह। जैसे एज आई सेड आई वाज अ इंडिपेंडेंट पार्टी, मेरी कोई पार्टी नहीं है, सो आई कैन वोट टू एनी पर्सन, बट मैं कोई पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकता। नॉमिनेटेड मेंबर 6 महीने के अंदर पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, आफ्टर 6 months दे कांट ज्वाइन। आया समझ में? अब अपन बात कर लेते हैं हल्की सी राज्यसभा लोकसभा
विधानसभा की बात हो गई, विधानसभा से चीफ मिनिस्टर बनते हैं। एक मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होती है। अपने यहाँ पे 6 स्टेट ऐसी हैं, 6 स्टेट जहां पे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल है। अपर हाउस राज्यसभा की तरह डबल हाउस है, जैसे कि आपका महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, तेलंगाना, ठीक है, वो राज्यसभा की तरह होते हैं। वहां के जो मेंबर्स होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, टाइप कर रहा हूं बच्चों, चैट बॉक्स में देखना। ये स्टेट में राज्यसभा की तरह होती है। इनका इलेक्शन डायरेक्ट नहीं होता, इनमें नॉमिनेशन होता है गवर्नर से। कुछ लोग नॉमिनेट होते हैं गवर्नर से, कुछ लोग नॉमिनेट होते हैं आपके जो पंचायत वगैरह, ये म्युनिसिपैलिटी वगैरह जितने भी आते हैं वहां से। कुछ लोग टीचर्स, जो एक्सपीरियंस टीचर होते हैं, बेसिकली रिनाउड पर्सन, यहां पे जाते हैं। सेम चीज है यहाँ पे। अगर कोई बिल पास होगा तो बिल पास होता है यहाँ पे, जैसे विधानसभा से पास होगा, फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल से पास होगा, देन गवर्नर उसको साइन करते हैं। आया समझ में? कुछ कुछ स्टेट में, हर स्टेट में ये नहीं है, 6 स्टेट में है अभी। और इसी के मेंबर थे मिस्टर उद्धव ठाकरे। क्योंकि उद्धव ठाकरे जब सीएम बने, ही वॉज नॉट दी एमएलए, उन्होंने इलेक्शन तो लड़ा नहीं था। फिर सर वो मुख्यमंत्री कैसे बन गए? वो मुख्यमंत्री ऐसे बने। अच्छा, एक क्वेश्चन है मेरा, कोई इंसान जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, क्या वो प्राइम मिनिस्टर बन सकता है? जल्दी बताओ, कम टाइम कम है देखो, और मुझे अभी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट डिस्कस करना है, टाइम खिंचता जाएगा। क्विकली कोई भी बता दो एक जन। कैन आई बी द प्राइम मिनिस्टर राइट नाउ? नो। ओके, एनी अदर आंसर? No. No. Okay, any other answer? I want a different answer. Yes, I can be made the prime minister. अच्छा, जब उद्धव ठाकरे सीएम बने तब तो एमएलए नहीं थे, हाउ डिड ही बिकेम द चीफ मिनिस्टर? सर क्योंकि वो बाद में एमएलसी बन गए थे। अच्छा, when Rajiv Gandhi became the prime minister, he was not a member of parliament. फॉरेन में थे वो, तो कैसे बन गए रातों रात प्राइम मिनिस्टर? एचडी देवगौड़ा, वो तो चीफ मिनिस्टर थे। फिर वो तो राज्यसभा के मेंबर नहीं थे, वो तो लोकसभा के मेंबर नहीं थे, देन हाउ डिड ही बिकम द प्राइम मिनिस्टर सर? आप बन सकते हो बिना बिना एमएलए बने चीफ मिनिस्टर। यू कैन बी द प्राइम मिनिस्टर विदाउट बीइंग द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फॉर 6 months। हाँ सर, वही बताने वाला था मैं बता रहा हूँ बेटा, बता रहा हूँ, ठीक है। फॉर 6 months, विद इन 6 months आपको इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। अच्छा, वेस्ट बंगाल इलेक्शन हुए, चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी लॉस्ट द इलेक्शन, डिस्पाइट दिस फैक्ट शी बिकेम द चीफ मिनिस्टर। याद है सबको? आई होप इतना आप लोग अवेयर हो। शुभेंदु अधिकारी ने चुनाव हराया था उनको, ठीक है सर। कैसे बन गई? बन सकती हैं 6 महीने के, विद इन 6 months शी कंटेस्टेड इलेक्शन अगेन, शी वॉन द इलेक्शन। अच्छा, झारखंड के चीफ मिनिस्टर हैं सोरेन जी, ठीक है। उनके फादर चीफ मिनिस्टर बने थे बिना एमएलए बने। अब टेक्निकली 6 महीने में इलेक्शन लड़ना था, इलेक्शन लड़े 6 महीने में, वो इलेक्शन हार गए। ही हैज टू रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर। उत्तराखंड के सीएम चुनाव हार गए थे, पुष्कर धानी जी, कैसे बन गए चीफ मिनिस्टर? बन सकते हैं।
दोबारा चुनाव लड़े, जीत गए, अगर वो हार जाते चुनाव तो उनको रिजाइन करना पड़ता। आया समझ में? ठीक है। अच्छा, एमएलएस ने कोई बिल पास किया, प्रेसिडेंट का तो मैंने बता दिया कि बाइंडिंग होता है प्रेसिडेंट के ऊपर साइन करने वाला। गवर्नर के साथ सेम सिचुएशन है क्या? गवर्नर के साथ सेम सिचुएशन है क्या? मान लो एक नाथ शिंदे जी एक लॉ बना करके लेके जाते हैं कि सर ये लॉ है, एंड भगत सिंह कोश्यारी जी मना कर देते हैं कि मैं नहीं पास करूंगा। ऐसा हो सकता है क्या? जल्दी बताओ, टाइम नहीं है। कोई भी एक। ऐसा हो सकता है। गवर्नर के जैसे प्रेसिडेंट के पास मैंडेटरी होता है एसेंट देना, गवर्नर के पास मैंडेटरी नहीं है एसेंट देना। गवर्नर उसको प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं, उसको डिसअप्रूव भी कर सकते हैं। जैसे दिल्ली में होता है, अरविंद केजरीवाल कोई बिल लेके आते हैं और वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर मना कर देते हैं कि नहीं पास होगा। आया समझ में? प्रेसिडेंट के साथ ये बाइंडिंग है, गवर्नर के साथ ये बाइंडिंग नहीं है। ठीक है। अब आज का लास्ट डिस्कशन, सर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है? बहुत आती है ये चीज क्वेश्चन में, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है? मान लो आज की डेट में 19 रहे, ओनली 19 स्टूडेंट्स आर लेफ्ट। See, I am working for the government of India. For example, I am a legal officer in ONGC. ONGC सब लोग जानते हैं, गवर्नमेंट जॉब है मेरी परमानेंट। कैन आई कंटेस्ट इलेक्शन? कैन आई कंटेस्ट इलेक्शन? नो, आई कांट। नो ओम, आई कांट। जितने लोगों के भी फादर गवर्नमेंट सर्विसेज में हैं, उनको ये बात पता होगी। उनको ऑब्वियसली व्हेन यू आर रिजाइनिंग टेक्निकली यू विल नो लॉन्गर अ गवर्नमेंट ऑफिसर। कॉमन सेंस। अब अगर मैंने रिजाइन कर दिया तो आई एम नॉट अ गवर्नमेंट ऑफिसर। मैं गवर्नमेंट ऑफिसर की बात कर रहा हूं। व्हेन यू आर व्हेन यू हैव रिजाइन यू आर नो लॉन्गर अ गवर्नमेंट ऑफिसर ना। ठीक है। कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर एज अ कंटेस्ट इलेक्शन नहीं कर सकता। ईदर आई हैव टू रिजाइन, देन टेक्निकली आई विल नो लॉन्गर अ गवर्नमेंट ऑफिसर। ठीक है। यही होता है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। अब सर इसको पढ़ाने की क्या जरूरत थी? ये तो हमको पता था। अभी कुछ टाइम पहले झारखंड के सीएम की मेंबर ऑफ लेजिस्लेशन एज ए एमएलए रद्द हो गई उनकी सदस्यता। देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट विद इन 1 month ही विल नो लॉन्गर रिमेन द चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड। क्यों? क्योंकि सर स्टेट गवर्नमेंट ने एक टेंडर निकाला माइनिंग लीज के लिए, और वो माइनिंग लीज किसको मिल गई? चीफ मिनिस्टर को। मतलब मैं ही निकाल रहा हूं टेंडर, और वो मिला भी किसे? मुझे। आपका गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में शेयर नहीं हो सकता। आप ही गवर्नमेंट, मैंने ही टेंडर निकाला, मैंने ही रिलीज किया, और मैंने ही खुद ही ले लिया। किसी भी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में, रोड बनाने में, घर बनाने में, हॉस्पिटल बनाने में एमएलए और एमपी का शेयर नहीं होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, क्या अपन ये कह सकते हैं कि अगर माइनिंग लीज में उनका शेयर होता तो सर उनकी ड्यूटी
और कंफ्लिक्ट आ जाता उनकी ड्यूटीज में, आता? यार अगर 4 लोगों ने टेंडर दिया है और टेंडर आप लोग मुझे दे रहे हो और मैंने चारों का रिजेक्ट करके खुद ही ले लिया, तो क्या ये एक इनजस्टिस नहीं है? अकाउंटेबिलिटी क्वेश्चन में आ रही है? आ रही है? कोई चैट बॉक्स में बताए सही बोल रहा हूं मैं, गलत बोल रहा हूं? आ रही है, आ रही है। ये ग्राउंड है इनके। वेदर गवर्नमेंट इज द अपॉइंटिंग अथॉरिटी। अच्छा, अपॉइंट कौन कर रहा है कॉन्ट्रैक्टर को? गवर्नमेंट। शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन ही अपॉइंट कर रहे हैं और हेमंत सोरेन जी ही कॉन्ट्रैक्ट ले लिए। वेदर द गवर्नमेंट हैज द पावर टू टर्मिनेट द अपॉइंटमेंट। यस भाई, मैंने टेंडर रिलीज किया, मैंने आपको अपॉइंट किया एज अ कॉन्ट्रैक्टर। अगर आप कोई फॉल्ट करोगे तो मैं आपको रिमूव कर सकता हूं ना। वेदर द गवर्नमेंट डिटरमाइंस द रेम्यूनरेशन। यस, टेंडर कितने पैसे मिलेंगे कौन ने डिसाइड किया? मैंने। मिनिमम पैसा तो मैंने ही डिसाइड किया सर। व्हाट इज द सोर्स ऑफ रेम्यूनरेशन? अच्छा, चीफ मिनिस्टर खुद की जेब से तो पैसा देंगे नहीं, है ना? पैसा कहां से आएगा? स्टेट गवर्नमेंट की साइड से। फिर क्या आता है? पावर दैट कम्स विद द पोजीशन। अब जो कॉन्ट्रैक्टर है वो लिखेगा स्टेट ऑफ, अच्छा मध्य प्रदेश सरकार, बहुत सी गाड़ियों में देखा होगा, झारखंड सरकार लिखेगा, वो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर है, वो पावर आ गई उसके पास। सारे पॉइंट्स फुलफिल हो रहे हैं, ये पॉइंट्स लिख लेना ध्यान से, ठीक है? ये आपको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में काम आएंगे। ये क्वेश्चन, ये टॉपिक्स मैं इसलिए डील कर रहा हूं क्योंकि इनकी पॉसिबिलिटी आने की है ना, क्योंकि ये न्यूज में चल रहे हैं। किसी का डाउट आया? यस, ठीक है। अभी चीजें क्लियर हुई? नेक्स्ट क्लास, ये सारी चीजें जो मैंने बताई हैं इनको घर पे जाके अच्छे से पढ़ना, अच्छे से क्लियर करना चीजों को, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में मैं जुडिशियरी डिस्कस करूंगा, जुडिशियल सिस्टम, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जितने भी चीजें होंगी, रिमेनिंग एंसिलरी चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग, सर फंडामेंटल राइट वाला प्रीवियस पीडीएफ में से मैं अभी आज, श्योर, ठीक है, आज मैं सारे पीडीएफ, सारे लिंक्स आपके साथ, मैम के साथ शेयर कर दूंगा। फंडामेंटल वाले, डीपीएसपी वाले, फंडामेंटल ड्यूटीज वाले, अभी तक जितने भी लेक्चर्स मैंने लिए सबका पीपीटी मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है? आप लोग थोड़ा सा अटेंटिव रहो। एज अ लॉ स्टूडेंट यू नीड टू स्पीक। जज के सामने थोड़ी बोलोगे कि सर मैं नहीं बोल रहा, ऐसे बैठोगे क्या जज के सामने? भगा देगा वो। और जज बन गए तो मैं नहीं दे रहा जजमेंट, ऐसा होगा क्या? क्लाइंट कोर्ट से बाहर निकलते ही मार देगा, पैसे लिए बोलने के और बोल नहीं रहे, है ना? थोड़ा सा बोलो, गलत सही फर्क नहीं पड़ता है, बोलो। और जो भी मैंने पढ़ाया है करंट अफेयर के साथ लिंक करके पढ़ो अच्छे से। प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में पढ़ो, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के बारे में पढ़ो। सर प्लीज सेंड होमवर्क क्वेश्चंस। निकेशा, होमवर्क के क्वेश्चन नोट कर लो बेटा, है ना? क्वेश्चंस आपके होमवर्क, अच्छा सब लोग होमवर्क नोट करो फटाफट से, सब लोग अटेंटिवली पेन ले लो, पेपर ले लो। क्वेश्चन नंबर 1, question number 1, whether watching porn inside the legislative assembly or parliament house is covered under parliamentary privilege, पहला। दूसरा, क्या ब्राइब देना, क्या उद्धव ठाकरे ब्राइब दे सकते थे बीजेपी वालों को? क्या ये कवर होता पार्लियामेंट्री प्रिविलेज में? ठीक है, 2 क्वेश्चन। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट का पूरा इलेक्शन करंट अफेयर से क्वेश्चन आएगा। अगर आप नहीं कर रहे हो तो आप सिंसियरली पढ़ाई नहीं कर रहे हो, आएगा क्वेश्चन, ठीक है? उसके बाद ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में
झारखंड वाला केस आज ही जाके पढ़ो, झारखंड में क्या हुआ। उसके बाद फिर मैंने किहोतो होलान, जो झारखंड, जो आपके महाराष्ट्र में जो इशू हुआ था, उसमें रोल, स्पीकर का रोल क्या है, ठीक है। किहोतो होलोहान जो केस था, किहोतो होलोहान, ये नॉर्थ ईस्ट का केस था। ये पढ़ना है, ठीक है। ये होमवर्क है। अगली बार मेरे को जो वो एक तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज वाले जो दोनों क्वेश्चन का आंसर मुझे देगा अगली क्लास में, मैं ऑफलाइन क्लास में उसको चॉकलेट दूंगा, ठीक है। और लीगल आंसर, ऐसे नहीं कि कुछ भी सर मुझे लगा इसलिए मैंने ऐसा बोला, नहीं, लीगल आंसर अच्छे से रिसर्च करो, पढ़ो अच्छे से, ठीक है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करो, बाय बाय, टेक केयर, ठीक है।